ناولز فار ایور میں خوش آمدید۔ ناول نوائزیز جس کی رائٹر ہے فرحانہ ناز ملک، اس کی یہ سیکنڈ ایپیسوڈ ہے، ہو سکتا ہے یہ سیکنڈ لاسٹ ایپیسوڈ ہے، تو آئیے جلدی سے سٹارٹ کرتے ہیں اس ایپیسوڈ کو بغیر کسی دیر کے۔ شکیل صاحب کی شوگر کا لیول اس حد تک بڑھ گیا کہ گھر والوں کے ہاتھ پاؤں پھول گئے۔ ہفتہ پورا انہیں ہسپتال میں رکھا گیا۔ گھر پہ شوگر کنٹرول ہی نہیں ہو رہی تھی۔ یار بوڑھا میں ہوں اور بیماریاں خود کو تم چپکا بیٹھے ہو، یہ فاؤل ہے۔ بڑے ابا چھوٹے کمزور سے بیٹے کے سرہانے سے ہٹنے کا نام ہی نہیں لے رہے تھے ان دنوں۔ بڑی اماں کے تو روز و شب جہاں نماز کی نظر ہو گئے۔ بہرکیف شوگر کنٹرول ہوئی تو انہیں گھر شفٹ کر دیا گیا۔ اس وقت شکیل صاحب ہال کمرے میں بیڈ پر نیم دراز تھے۔ ابیہا اور اجیا دونوں کندھوں سے لگی بیٹھی تھی۔ بڑی اماں پائیتی کی طرف بیٹھی وظیفے پڑھ پڑھ کر ان پر پھونک مار رہی تھی۔ ابا جان آپ سمجھائیے ان کو، خواہ کی پریشانیاں دل میں پالے ہوئے ہیں۔ اس پیدا کرنے والے نے بیٹیاں دی ہیں تو ان کی تقدیر بھی کہیں نہ کہیں جوڑی ہوگی۔ وقت سے پہلے فکرے پالنے سے کیا فائدہ ملا، الٹا بیمار ہو گئے۔ کمزور اور مزمل سے سعدیہ بڑے ابا کے قریب بیٹھ کر شوہر کے خلاف شکوہ کناں ہو گئی۔ شاباش، بڑے ابا نے چھوٹی بہو کا سر کندھے سے لگا لیا۔ نالائق، تم سے تو میری بہو عقل مند ہے، کیسی مثبت سوچ ہے اس کی۔ میری پریوں جیسی پوتیاں تو نور ہے اس گھر کا۔ اللہ خود ان کے گھر ڈھونڈ کر ہماری رہنمائی کرے گا، تم خواہ ہولتے رہو۔ اب پریشانی کے دن گئے ابا جان۔ شکیل صاحب کمزور سی آواز میں گویا ہوئے۔ ابیہا کے اٹھ جانے کے بعد وہ سیٹ ہمایوں نے سنبھال لی تھی اور اب بڑے دل سے چچا کی ٹانگیں دبا رہے تھے۔ میرا علی ہے نا، میری بیماریوں کو بھگانے والا مسیحا۔ علی کا نام لیتے ان کی آنکھیں فخریہ چمکنے لگی تھی۔ اب اس کا چوتھا سال سٹارٹ ہونے والا ہے، پھر میرا بچہ انجینئر بن جائے گا، میرا بازو بنے گا، بہنوں کے سر پہ سایہ کرے گا۔ مجھے اب کیوں فکر ہونے لگی؟ علی کے ہوتے ہوئے میں کوئی پریشان ہو سکتا ہوں بھلا؟ اکلوتے بیٹے کی محبت میں لہجہ کانپ رہا تھا۔ اللہ تمہارے علی کو لمبی حیاتی دے، آمین۔ تم بھی ذرا اس کا خیال رکھو، اتنی دور معصوم پڑھنے گیا ہوا ہے اور پیچھے باپ بستر پکڑ بیٹھا ہے، اسے بتائیں گے تو کتنا پریشان ہوگا۔ بڑی اماں نے تیز لہجے میں ڈپٹ کر کہا اور تیزی سے تسبیح کے دانے گرانے لگی۔ اسے بتانے کی ضرورت بھی نہیں ہے، میں اب بالکل ٹھیک ہوں، شکیل صاحب نے بلا تاخیر کہا تھا۔ بیٹے کتنی بڑی نعمت ہوتے ہیں بھائی صاحب، یہ مجھے علی کو دیکھ کر محسوس ہوتا ہے۔ جس طرح آپ کے بیٹے آپ کا سہارا بنے ہوئے ہیں، افسر بن کر آپ کے لیے فخر کا باعث بنے ہوئے ہیں، آپ کو آرام و سکون پہنچانے کا ذریعہ بنے ہوئے ہیں، کل کو یہ سب میری زندگی کا بھی حصہ بنے گا۔ علی جوان ہو گیا، میرے قد سے اونچا ہو گیا، مجھے سنبھالنے جوگا ہو گیا ہے نا؟ ان کے چہرے پر اندرونی تاثرات جاگزی ہو گئے تھے۔ سب حیرت سے انہیں دیکھ رہے تھے کہ یہ آج کیسی باتیں کر رہے ہیں۔ میرے بیٹے تمہارے بھی بیٹے ہیں شکیل، تمہارا ایک کیوں، چار بیٹے ہیں، کوئی ایک بھی تمہیں پیٹھ نہیں دکھا سکتا، یہ سب تمہارے اپنے ہیں، انہیں خود سے الگ مت سمجھو۔ جمیل صاحب نے رسان سے سمجھانے کی کوشش کی تھی۔ بے شک، کہتے ہوئے شکیل صاحب نے آنکھیں موند لیں۔ اس میں انہیں قطعی شبہ نہیں تھا کہ بھتیجے انہیں باپ جتنا عزیز رکھتے تھے۔ علی کی غیر موجودگی میں ان کی دوائیاں لانا، ڈاکٹرز کو دکھانا، وقتاً فوقتاً خود دوائیاں کھلانا ہمایوں کے ذمہ ہوتا تھا۔ اسی لیے تو وہ بیٹوں کو نعمت کہتے تھے۔ یہی نہیں، بابر اگر ڈی جی خان آ جائے تو بھی اپنی اونچی پوسٹ ایک طرف رکھے چاچا کی ٹانگیں دبانے میں بیٹھ جاتے تھے۔ سو ہائی لیول شوگر کے اس دورے کا اٹیک بھی اپنوں کی بیش بہا محبتوں کی بدولت ناکام ٹھہرا تھا۔ تم نے اتنے دنوں سے مجھے میسج کیوں نہیں بھیجا؟ علی نے ٹائپ کر کے اسے سینڈ کیا تھا۔ اصل میں نا، میری دونوں سمز کا بیلنس فشو ہو گیا۔ خیر ابھی بھی بابا سے پیسے لینے گئی تو مجھے امی بھی آ گئی، پیچھے امی بھی آ گئی شامت بن کر۔ میں تو بھگت آتی اور بابا بھگت رہے ہیں۔ پڑھتے ہوئے علی کی مسکراہٹ گہری ہو گئی۔ چلو اچھی نئی تازی سناؤ، علی نے دوبارہ ٹائپ کر کے سینڈ کیا۔ نئی تازی؟ او ہاں، آج امی نا ظالم مسینہ بن گئی۔ صبح لنچ ٹائم سے پہلے مجھے پیاز کا کانٹا سکھایا۔ اف توبہ، میری آنکھوں سے اتنا پانی بہا کہ کیا بتاؤں علی۔ کیا سب کی آنکھوں سے پانی بہتا ہے پیاز کاٹتے وقت؟ اچھا، پھر انہوں نے مجھے کپڑے پریس کرنا سکھائے، 3 شرٹس کی ہیں، کہتی ہیں نہیں ابھی اور زیادہ پریکٹس کی ضرورت ہے، 2 مزید کرو۔ بس میں تو تھک گئی۔ موبائل ہونٹوں سے لگایا۔ علی کتنی دیر تک اس معصوم کے میسج میں کھویا رہا، اور واقعی یہی بات، چھوٹی چھوٹی باتیں اسے فریش کر دیتی تھی۔ اچھی طرح سے انجوائے کر چکنے کے بعد اس نے ایک بار پھر ٹائپ کیا۔ تم نے مجھ سے تو یوں پوچھا ہے جیسے میں مظفر آباد یونیورسٹی سے انجینئرنگ کی نہیں بلکہ کوکنگ کی ڈگری لینے آیا ہوا ہوں۔
बहरहाल सुना तो यही है कि प्याज काटते हुए हर किसी की आंखों से आंसू बहता है। और शाबाश कि तुमने घर के कामों में दिलचस्पी लेना शुरू कर दी है। कुछ और सीखो ना सीखो, कपड़े प्रेस करना ज़रूर सीखो। मुझे इस्त्री करना बहुत बुरा लगता है। हाँ, प्याज लहसुन में काट लिया करूँगा। उसे उम्मीद नहीं थी कि उर्वा उसके आखिरी जुमलों को समझ सकेगी, और हुआ भी यही। 5 मिनट पूरे उर्वा ने यही सोचते हुए गुजारे कि अली ने ये क्यों लिखा है। फिर सर झटक कर टाइप करने लगी। मेरे काम करने से तुम्हारा तो कोई ताल्लुक़ नहीं बनता। अच्छा ये बताओ, तुम्हारी कॉर्नेटो कैसी है? कश्मीर की है ना? फिर तो बहुत प्यारी होगी। ये मैसेज पढ़ने के बाद अली ने 5 मिनट सर हाथों में गिराए गुजारे। महबूब की खोपड़ी अकल से खाली थी। उसे दिल का हाल बताने की कोशिश भी रायगा गई। दांत कचकचाते हुए अली ने दोबारा सेलफोन उठाया। कॉर्नेटो बहुत बेअकल है, और कश्मीर की नहीं, अपने मुल्तान की है। शक्ल की भी कोई ऐसी हसीनो जमील नहीं। बस वही बात है, मोहब्बत अंधी होती है, दिल तो गधी पर भी आ सकता है। पढ़कर उर्वा पर तो सख्ता तारी हो गया। 5 मिनट फ्रीज बैठे रह गुजार दिए। बाद में मोबाइल उठाया तो दिल बहुत अजर्दा हो रहा था। हाय नहीं अली, ऐसा मत करो प्लीज़। गधी और तुम्हारी कॉर्नेटो, मुझे बहुत रोना आ रहा है। मुझे अब मैसेज मत भेजना। ये जानकर मेरी तबीयत ख़राब हो गई है। मुझे लगता है बीपी लो हो गया है। इसके बाद अली ने कितनी ही बार ट्राई की, लेकिन मुंह की खाई। और वह साहिबा ने इंतहाई मलालज़दा होकर सेल फ़ोन ही ऑफ़ कर दिया था, और अब यकीनन सोग मना रही होगी। सर थामे अली दिल को गालियाँ देता रहा कि जिसे दुनिया जहाँ में कोई लड़की अच्छी लगी थी तो उर्वा जमील जैसी बेवकूफ़। अभी अभी तैमूर की जानिब से इंतहाई रोमांटिक किस्म की गज़ल सेलफोन पर मैसेज की सूरत में मौसूल हुई थी, जिसे वो कितनी ही बार पढ़ चुकी थी, मगर सैरी नहीं हो रही थी। शर्मगी मुस्कुराहट सजाए वो चौथी बार इनबॉक्स खोलने लगी थी कि आधी तूफ़ान बनी। उर्वा कमरे में दाखिल हुई। नजवा ने आनंद फानंद मोबाइल ऑफ किया था। क्या हुआ, इतना घबराई हुई क्यों हो? अम्मी पीछे लगी है, हाँफते हुए उसने बताया। मैं भाग रही थी, वो भी मेरे पीछे भाग रही थी। इतनी बड़ी होकर मैं भागते भागते यहाँ आ गई। वो भी भागते भागते दरवाज़ा क्रॉस कर ही रही थी कि बड़े अब्बा से टकरा गई। अब पेशी भुगता रही अपने भागने की। बेड पर बैठकर टांगे चलाते हुए वो मज़े से बोलती रही। मासूम नकुश दिल मोह लेने वाले थे। नजवा दिलचस्पी से उसे घूरती रही। और तुम भागी क्यों? एक तो मेरे सर पर ऑयल लगा रही थी, ऊपर से वो जो काला परांदा नहीं होता जो गांव की औरतें अपने बालों में डालती हैं, वही मेरे बालों में डाल रही थी। मैंने लाख कहा कि अम्मी मेरे तो 3 बाल भी नहीं आते, आप क्यों जहमत करती हैं? तो बोली इसीलिए तो परांदा डाल रही हूँ ताकि तुम्हारे बाल बड़े हो जाएं। वैसे नजवा, ये अम्मी को अचानक मुझे औरत बनाने का ख्याल क्यों आ गया? उसने तफसील बताकर एंड में सवाल भी दाग दिया। नजवा जवाब देने के बजाय बस मुस्कुराती रही। अच्छा छोड़ो, दिखाओ ज़रा तैमूर भाई ने क्या सेंड किया है। फिर अचानक ही मोबाइल लेकर ऑन करने लगी। नजवा की मुस्कुराहट उड़न-छू हो गई। जब तक मोबाइल छीनना चाहा वो गज़ल बाकायदा सुर में पढ़ भी चुकी थी। नजवा की तो सिटी गुम हो गई। बूथा लटकाने की ज़रूरत नहीं, भाई मुझे सब बता कर गए, और मुझे तुम्हारे जैसी गूंगी भाभी भाई की खुशी जानकर कबूल करनी ही पड़ेगी। बड़ी मीसनी सी सूरत बना ली थी। नजवा ने तकिया उठाकर उसे मारना शुरू कर दिया। और बैड न्यूज़, मेरी तो चलो सिर्फ गूंगी भाभी होगी, तुम्हारी तो ढीचू ढीचू करने वाली भाभी बनेंगी। अली की कॉर्नेटो इंतहाई तासुब से हाथ मल मल कर बताने लगी। क्या मतलब? मतलब अली जिसको पसंद करता है ना, वो बहुत बदसूरत है। नजवा को कतई यकीन नहीं आया कि और उसकी तो अफसुर्दगी का ये आलम था कि आंखें लुबाब भर गई। कैसी बहन हो तुम, भाई के साथ चांद सी दुल्हन के बजाय बदसूरत दुल्हन बर्दाश्त कर लोगी? मजबूरी है, भाई की पसंद जो होगी। नजवा की जी हजूर, उससे एक आंख ना पाई। जबकि नजवा जानती थी कि अली उर्वा को बेवकूफ़ बना रहा होगा। पेपर्स के बाद शुमाली इलाका जात का लॉन्ग ट्रिप यूनिवर्सिटी की तरफ से भुगताकर अली और तैमूर की सवारी बादे बहारी खैर से वापस घर आ ही गई। अली का 3रा साल स्टार्ट हो चुका था, जबकि तैमूर का फाइनल ईयर चल रहा था। घर में हस्बे साबिक हाथों हाथ इस्तकबाल किया गया। माँ बेटों को गले लग कर अलग हुई तो बड़ी अम्मा ने दबोच लिया। वो दूर हुई तो बड़े अब्बा के शिकंजे में आ फंसे। वो थे तो बाबाज ने अपने लगते जिगरों के माथे चूमे। उनके फारिग होने के बाद हमायूं भाई बगल गिर हुए। वो बारी भुगता चुके तो दोनों ने आंखें मिलाने के बाद खुशी से बेहाल खड़ी लड़कियों की जानिब देखा और अब कौन आ रहा है, यक ज़बान होकर कहा। अली की शरीर नज़रें उर्वा पर, तैमूर की नजवा पर थी। नजवा तो जुमले का मतलब समझकर छुई मुसी हो गई। उर्वा ने अलबत्ता अबिया से कहा, जाओ भाई से गले मिलो, और ख़ुद अपने भाई के साथ जा लगी। आखिर में अली चार्लीस के पास आ खड़ा हुआ कि जो फुदक फुदक कर अली आ गया, अली आ गया।
का राग बेहतरीन सुरों में अलाप रहा था। यार कुछ कमज़ोर हो रहे हो, बड़ी अम्मा ने ख्याल नहीं रखा था क्या? वाकई अभी झगड़ता हूँ। साथ ही बड़ी अम्मा की पुकार पड़ने लगी। बड़ी अम्मा जहाँ भी थी हाथ पांव फुला बैठी, क्योंकि पुकार अली की आवाज़ में थी और वो चार्ली से तबीयत का अहवाल पूछ रहा था। सो बड़ी अम्मा को यकीन था कि चार्लिस की बाबत उनसे पास पुरस होनी है। अफ्ताह खेजा वो अली तक आई थी। चाची प्लीज़ हेल्प मी। हाथ में छोटी सी बास्केट था में वो एन से इनके वस्त में आकर चीखी तो सादी अपना काम छोड़ छाड़ किचन से बाहर आ गई। बरामदे में तख्त पर बैठे अली पर उसकी नज़र नहीं पड़ी थी कि जो बड़ी अम्मा को अपने शुमाली इलाका जात के ट्रिप की एल्बम दिखा रहा था। क्या हुआ जानू? उसकी परेशान सूरत जाहिर कर रही थी, गोया बहुत अजीम मसला दरपेश आ गया हो। और कबल इसके कि वो मसला बयान करती शकीला और रोशी भाभी भी वहीं आ गई। शकीला के माथे पर तेवरियाँ पड़ी हुई थी। लहसुन छील लिए? आते ही उन्होंने करख्तगी के साथ पूछा तो वह सादिया के साथ जा लगी, जबकि रोशी भाभी अली की तस्वीरें देखने बरामदे में चल दी कि जहाँ अब नजवा, अबिया और रजिया का इजाफा हो चुका था। देखिए ना चाची, अम्मी तशद्दुद पर आ गई। आए रोज़ मुझे तंग करती हैं। आज मुझे लहसुन छिलने पर सादिया को टूट कर प्यार आया और शकीला का दिल कर रहा था कि अच्छी खासी ठुकाई लगा दे उसकी। यूँ कह रही थी गोया शकीला ने लहसुन छिलने का काम ज़िम्मे न लगाया बल्कि डायरेक्ट ज़मीन से उगाने का कहा। हाँ, तुम कहाँ से छील सकती हो? तुम तो ठहरी सरदारजादी, ये काम तो तुम्हारी नौकरानियाँ करेंगी, यानी मैं और रोशी। शकीला कहा जाने को थी उसे। जी नहीं, मेरी चाची मेरे हिस्से के काम कर देगी। उसने लाड़ से चाची के गले में बाहें डाल दी। सबकी तवज्जो एल्बम से हटकर उन पर मरकूज हो गई थी। हाँ? शकीला ने हैरत से नाक पर उंगली रख दी। ना तो अगले घर भी तुम्हारी चाची आकर काम कर देगी। मैं क्यों जाने लगी अगले पिछले घर? मेरा अपना घर तो यही है और यहाँ है ना चाची। अली मुश्किल कहकर रोक पाया। रोशी भाभी और बड़ी अम्मा तो दूर तक की सोच बैठी नहीं सोच पाई थी तो नोक-झोंक करती माँ बेटी। बेटी मासूमियत में और माँ गुस्से में इन जुमलों के मतलब समझ ही नहीं रही थी। तुम क्या ख्वामखा में गले पड़ी रहोगी हमारे? कल को ब्याह नहीं रचाना तुम्हारा क्या? बस करो बड़ी बहू। अब की बड़ी अम्मा ने चिंगाड़ कर शकीला के मिजाज ठिकाने लगाने की इब्तदा की। आ मेरी बच्ची, तू मेरे पास आ। भैंस के आगे बीन न बजा। साथ ही पिचकार कर उर्वा को भी बुलाया तो वो झट उनकी महफिल का हिस्सा बन बैठी और रजिया से एल्बम छीन कर देखने लगी, जबकि शकीला भुना कर ही तो रह गई। बड़ी अम्मा दर पर्दा उन्हें भैंस कह गई थी। मारे गुस्से के वो वहीं सेन में बिछी चारपाई पर धम से बैठ गई। अली तुम इन इलाकों में जाकर तो और ज़्यादा रेड हो गए। वो तस्वीरें देख नहीं रही थी, हिफ्स कर रही थी। अली उसके देखने के अंदाज से जी भर कर महफूज हो रहा था, जबकि अजिया मुझे दे भी अब कहती आजिज़ आई बैठी थी। माशाल्लाह भी कहो, अपनों की नज़र फ़ौरन लग जाती है। बड़ी अम्मा ने घर का तो उसने अच्छी बच्चियों की तरह फ़ौरन माशाल्लाह कहा। ये लो, मरी जा रही थी। एल्बम अजिया की गोद में फेंक कर वो बोली थी। अजिया से उसकी कम ही बनती थी। सेन में चार्लिस की आवाज़ गूंज रही थी। उर्वा आ गई, उर्वा आ गई। उर्वा को बुरा तो लग रहा था मगर बंदी बनी बैठी रही। उसी असना में बाहर का राउंड लगाकर बड़े अब्बा भी आ गया। सुनाओ बरखोरदार, क्या हो रहा है? नजवा के हाथ से ग्लास थाम कर वो गोया हुए। कुछ नहीं, तैमूर इमरान के साथ गया है। मुझे बोरियत हो रही है। जी हाँ, हमारे साथ जाएगा तो क्लासेस ज्वाइन करेगा। अरे हाँ, जाने की बड़े अब्बा भोली बात याद आने पर इतनी ज़ोर से बोले कि दोनों बहुएं और बड़ी अम्मा ने कलेजा थाम लिया। ये अपना कर्नल नहीं है मेरा यार? उसके घर कल शाम में मिलाद है, कुरान ख्वानी है, तो कह रहा था आप सबसे कह दूं जाने का। पैगाम पहुंचाने के बाद पानी का आखिरी घूंट भरा और खाली गिलास नजवा के हवाले कर दिया। हाय, सभी पर हैरानी सवार हो गई। आज तक न उस मोटे कर्नल की बीवी बेटियां हमारे घर आई, न हम कभी गए हैं, फिर इस बार किस खुशी में दावत दे दी। मुझे तो लगता है जमील के अब्बा या तो आपने सुना गलत होगा या फिर उस खब्तुल हवास कर्नल ने गलत कहा होगा। आप दोनों पर एक दूसरे का रंग चढ़ गया। कर्नल की खूबियाँ आप में और आपकी उसमें चली गई। बस कोई ज़रूरत नहीं आइंदा कर्नल के साथ बाहर दुकानों के थड़ों पर बैठने की, आवारा लड़कों की तरह। बड़ी अम्मा तो लगता था भरी बैठी थी, अगला पिछला हिसाब खोल बैठी। बड़े अब्बा बेचारे हक्का बक्का रह गए। ये खूब रही, तंजी हंसते हुए उन्होंने आगाज़े तबल जंग किया। घर बैठूँ तो भी आंखों में खटकता हूँ, बाहर जाऊँ तब भी बुरा। यार अली, मैं क्या करूँ? उनके लहजे में मसनूई बेचारगी थी। कुछ ना करें, बस ये सोच कर खुश हो कि आपके बाहर जाने के बाद ये उदास हो जाती है। इंतज़ार तवील हो जाए तो गुस्सा करती है और ये मोहब्बत की निशानी है, ठीक है ना? अच्छा, अब के उनके लहजे में मायनी खेजी आ गई। तुम्हें बड़ा तजुर्बा है। जी। अली पर बेहोशी तारी होने लगी। बड़े अब्बा, आप मेरी गोली मत खाइए। और बड़ी अम्मा को देखिए, अभी तक आपको घूरने में मसरूफ़ हैं। कहीं आप
جملہ مکمل کرنے سے پہلے علی کھڑا ہو گیا۔ بڑے ابا کے کان کھڑے ہو گئے اس کے انداز دیکھ کر۔ لگ رہا تھا کہ وہ جو کچھ کہنے جا رہا ہے وہ قابل گرفت ہے، جبھی تو بھاگنے کے لیے دروازے کے پاس جا رکا تھا۔ کہیں آپ دکانوں کے تھڑوں پر بیٹھ کر کسی حسینہ کو تاڑنے میں تو نہیں لگ گئے؟ آپ کی بیگم کے تاثرات یہی بتا رہے ہیں کہ انہیں کہیں سے شکایت موصول ہوئی ہے۔ نہ صرف شریر سی ٹون میں کہا بلکہ کہنے کے بعد درمیانی دروازہ عبور بھی کر گیا۔ بڑے ابا بس داڑھی میں خلال کر کے رہ گئے۔ نالائق، نامعقول کہیں کا، بعد میں مسکراتے رہے۔ بہرحال کل قرآن خوانی پر سب جائیے گا۔ اپنے کمرے میں جانے سے پہلے وہ یاد دہانی کرانا نہیں بھولے تھے۔ اے لو، بارات لے کر جا رہے ہیں کیا؟ بڑی اماں کو اچھا نہیں لگ رہا تھا یوں خواہ مخواہ میں جانا۔ ان کی عورتیں تو آئی ہی نہیں تھی کارڈ وغیرہ دینے۔ ان کے برعکس روشی بھابھی اور لڑکیاں ایکسائٹڈ ہو رہی تھیں۔ ہائے نجوہ، تم اپنے بال کھلے چھوڑ دو نا، کرنل کی بیٹیاں دیوانی ہو جائیں گی۔ بڑی اماں نجوہ کے بال سلجھا رہی تھی جب عروہ نے فرمائش داغی۔ نظر لگ جاتی ہے۔ بڑی اماں کی تنبیہ پر اس نے منہ بنا لیا۔ ٹی وی کی ماڈلز اور ایکٹریسز کو کیوں نہیں لگتی؟ ان کے بال تو ہر وقت کھلے ہوتے ہیں۔ یہ میں ان سے پوچھ کر بتاؤں گی میری بچی۔ نجوہ کی کس کے چوٹی گونتے ہوئے وہ اس کی بونگھیوں پر زچ سی ہو گئی۔ کمرہ اس وقت میک اپ کی چیزوں کی خوشبوات سے بھرا پڑا تھا۔ سعدیہ، شکیلہ اور روشی ایک کو نہ سنبھالے ایک دوسرے کو سنوارنے میں لگی تھی اور لڑکیاں ایک طرف تیاری ابھی جاری تھی جب علی اور تیمور بھی آ گئے۔ عروہ، مجھے یہ آئی لائنر لگا دو۔ ابھی ہل لائنر تھامے اس کے سامنے آ کھڑی ہوئی۔ وہ اپنی مصروفیات چھوڑ کر اسے نہایت سلیقہ و مہارت سے لائنر لگانے لگی۔ یہ تم لوگ قرآن پاک پڑھنے جا رہی ہو یا اپنے لیے رشتے ڈھونڈنے؟ علی کی زبان پر کھجلی نہ ہو یہ ممکن تھا، سب کو جتا دیکھ کر کہے بغیر نہ رہ سکا۔ جناب، آج کل فیشن چل پڑا ہے میلاد شریف، قرآن خوانی وغیرہ میں بھی سج سور کر جایا جاتا ہے۔ نہ جائے تو میزبان سمجھتے ہیں ماسیاں آ گئی ہیں۔ حسب توقع عروہ کی جانب سے جواب آیا تھا۔ اور نہیں تو کیا، معاشرے کی زوال پذیری دیکھو، 40ویں پر بھی عورتیں جائیں گی تو نئے فریش حلیے میں۔ روشی بھابھی ٹپ ٹاپ سے تیار تھی۔ چند لمحوں تک خاموشی چھائی رہی۔ بیچاری لڑکیاں۔ علی نے پھر انٹری ماری۔ کیوں؟ عروہ نے بہویں اچکا کر اسے دیکھا۔ اس کی صدا پر علی کے دل کو آج کے دن کی سوغات مل گئی تھی گویا۔ کتنا تردد کرتی ہیں، یہ لگایا وہ لگایا، پھر بھی تھوبڑے ویسے کے ویسے رہتے اور ادھر ہم ہیں، کہہ کر علی نے تیمور کو دیکھ کر کالر کھڑے کیے۔ اس نے بھی کر دیے۔ ایک ہم ہے، بس منہ ہاتھ دھو کر چلے جاتے ہیں پھر بھی محفل لوٹ آتے ہیں۔ تیمور نے علی کی نامکمل بات مکمل کی تھی۔ عروہ کر کے رہ گئی۔ قدر تاخیر سے خواتین کا یہ کارواں 2 گلیاں چھوڑ کر ریٹائرڈ کرنل کی کوٹھی کے گیٹ پر پیدل ہی آ گیا۔ گیٹ پر کرنل کے ڈی ایس پی بیٹے کی نیم پلیٹ لگی تھی اور ڈی ایس پی خود بھی گیٹ پر کسی سے محو گفتگو تھا۔ انہیں دیکھا تو ایک طرف کو ہو گیا، لیکن ایک چہرے پر اس کی نظریں بار بار اٹھنے کی خواہش مند ہو گئی تھی۔ ساری خواتین گیٹ سے فرداً اندر داخل ہوئی اور ایک ایک کر کے ٹھنکتی گئی۔ سامنے ہی کرنل صاحب کی بیگم اپنے بھاری جثے کے ساتھ دیگوں کی بچت خالی کرنے میں لگی ہوئی تھی۔ ان کی تینوں بیٹیاں اڑی اڑ رنگت کے لون کے کپڑوں میں ملبوس اپنی اماں کی مدد کرنے کی غرض سے پاس کھڑی تھی۔ یہاں تو ختم شریف کے نہیں بلکہ سب ختم کے آثار نظر آ رہے ہیں۔ ابیہ کے کان میں منہ گھسیڑ کر عروہ نے سرگوشی کی تھی۔ بڑی اماں کی تو انگشتِ شہادت ناک پہ ہی ٹک گئی، گویا تیاری دیاری سب ضائع۔ خدا خدا کر کے تو انہوں نے آج اپنا نیا نویلا سفید چکن کا سوٹ پہنا تھا کہ جیسے پہننے کے لیے وہ اہم ایونٹس یہ کہہ کر رد کرتی آئی کہ نہیں، اس پر نہیں پہنوں گی، اور آج ٹور بنانے کے خیال سے یہاں پہن کر آئی تو آگے محفل کے آثار ہی غائب۔ سبھی گھر کی مالکاؤں کے حیرت بھرے تاثرات دیکھ کر پانی پانی ہو جا رہی تھی، جو انہیں یوں دیکھ رہے تھے جیسے عورتوں کی اتنی جماعت پہلی بار دیکھ رہی ہوں، یا پھر سب کے سب زمین سے اگی ہوں۔ بالآخر کرنل صاحب کی چھوٹی بیٹی آگے بڑھی، مسکراہٹ سجا کر ملی تو کچھ دل کی تسلی ہوئی اور چہرے کی رونق لوٹی۔ چھوٹی بیٹی صاحبہ انہیں ڈرائنگ روم کے بجائے اپنے یا بہن کے بیڈ روم میں لے آئی۔ ڈرائنگ روم میں ڈی ایس پی بیٹے کے مہمان تشریف رکھے ہوئے تھے۔ بیٹی، قرآن خوانی اتنی جلدی ہو گئی کیا؟ عورتیں چلی بھی گئی؟ بیٹھتے ہی بڑی اماں نے ذہن میں کلبلاتا سوال پوچھا تو لڑکی جس کا نام تحریم تھا مسکرانے لگ پڑی۔ جی آنٹی، اصل میں صرف مردوں میں تھی، مسجد کے طالبوں کو بلا لیا تھا، قرآن پاک کے ختم کر کے لیے عورتوں میں سے کسی کو بھی انوائٹ نہیں کیا تھا۔ لیجیے، سبھی کی زبان تالو سے جا چپکی، بات ہی ختم ہو گئی تھی۔ عورتیں انوائٹ بھی تھی اور وہ جمع غفیر کی صورت آ بیٹھی۔
कमरा भी छोटा पड़ रहा था। हर एक ने अपनी अपनी जगह आंखें मीच कर तसव्वुर किया था। वो कबूतर और आंखें बंद करके मेज़बान ख़वातीन के सामने होने वाली खफत से बच गई हैं, पर आंखें खुली तो तहरीम का मुस्कुराता गोल गोल चेहरा सामने था। दिल कर रहा था शुतुरमुर्ग की तरह रेत में सर दबाए थे, कुछ तो करें कि शर्मिंदगी से बचें। हम भी कुरान ख्वानी के लिए तो नहीं आए थे, हम तो वैसे ही हकलाक लाकर वजाहत देती बड़ी अम्मा को बाकी सब ने घूर कर देखा था। ठीक है, नहीं आए थे या आए थे, अब आगे से वजाहतें तो ना दे। पोल खोलने में बड़ी अम्मा का कोई सानी नहीं था। प्लीज़ बड़ी अम्मा, फैमिली फ्रंट का बॉबी मत बनिए, और जब तक यहाँ बैठे आप बोलने का फरीज़ा बहनों के कंधों पर डाल दें, बहुओं के कंधों पर डाल दें। आपके बोलने से दिल हौलने लगता है। बड़ी अम्मा के साथ चिपक कर बैठी अजिया ने नहायत नागवारी से उनके कान में सरगोशी की तो वो नागन के मानित बल खा गई। खासी घसीली नज़रों से अजिया का सर तपा जायज़ा लिया था। फिजाओ हालात मुवाफिक नहीं थे, वरना थप्पड़ भी जुड़ देती। अभी सिर्फ करके रह गई। देगे खाली करके बेगम रिटायर्ड कर्नल, बाकी दोनों बेटियां नौशीन और फरिया भी आ गई। आंटी के कपड़े देगों की कालक से दाग दाग हो रहे थे, मगर वो जूं की तू चली आई। इससे साबित हो रहा था कि वो सादी बंदी थी, यानी अपने ही जैसी। सो चंद लम्हों बाद सब उनसे फ्रैंकली गुफ्तगू कर रहे थे। लड़कियां लड़कियों के साथ घुल मिल गई थी। तुम्हारी शक्ल तो बिल्कुल चीनियों जैसी है, वहीं पैदा हुई हो क्या? फरिया को बेहद मासूम और नाजुक सी उर्वा कुछ ज़्यादा ही अच्छी लग रही थी। तभी तो बातें करते करते अचानक पूछ बैठी, जिनकी शक्ल चीनियों जैसी होती है वो चीन में पैदा होते हैं क्या? अभिया ने कहा था। नहीं, लेकिन ये तो बिल्कुल फॉरेनर है, किसी को ना बताओ तो वो इसे चीनी ही समझेगा। फरिया की नज़र उसकी छोटी सी मगर खूबसूरत शेप की नाक पर थी। असल में तायाबू कहते हैं, ताई अम्मी ने उसके पैदा होने से पहले ड्राउनी फिल्में बहुत देख ली थी। बस फिर ड्राउनी और पाकिस्तानी इम्तजाज की ये हसीना पैदा हो गई। एक बात है, तुम हो बहुत मासूम, दिल करता है बस तुम्हें देखते ही रहें। ये शुक्र है कि आंखें तुम्हारी बिल्कुल ही चंदी नहीं हैं, सूजी हुई तो हैं। अजिया उसे वाकई गौर से देखती थी। ये यकीन उर्वा को अब हुआ था, हल्की सी, और ये उसके हुस्न में इजाफा करती हैं, बुरी नहीं लगती। बस भी करो इसकी तारीफ़ें, हम भी तो सामने बैठे हैं। अब के नजवा ने मसनूई जालसी दिखाए तो तहरीम नौशीन मुस्कुराने लगी। बुजुर्ग ख़वातीन में भी मौजूद गुफ्तगू उर्वाई थी कि सबसे शरारती ज़िद्दी लाडली है और सभी को प्यारी भी। मेरे बाबा मुझे शेर कहते हैं। कॉलर खड़े करके उर्वा ने अपनी खूबियाँ गिनवानी शुरू की। अजिया बाकायदा रुख फेर कर बैठ गई। और अली भाई भेड़ कहते हैं। रुख फेरे फेरे ही अजिया ने टांग अड़ाई थी। जी नहीं, अली मुझे ट्वीटी कहता है। मेरे भाई तीनों मुझे ख्वामखा में मोटू कहते हैं, और मेरी अम्मी कहती कि मैं इंसान ज़रूर हूँ, लेकिन आदतें मेरी शैतान के हम पला हैं। बड़े फ़ख्री अंदाज में खासे ऊंचे वॉल्यूम में वो ये सब बता रही थी, इस बात से बेखबर होकर कि खुले दरवाजे के पास भारी कदम रुक गए थे उसकी निराली खूबियाँ सुनकर। यही नहीं, सुनने वाले के चेहरे पर मुस्कुराहट भी रक्सा हो गई थी। ज़रा सा आगे होकर उर्वा साहिबा की शक्ल भी देख ली गई थी और देखकर बड़े मज़े से ओके भी कर दिया गया था। दिल को वेरी वेल डन कहता, चाइनीज़ नकुश को नज़रों में समोता वो बंद दरवाजे के पास से हट गया। और ये क्यों नहीं बताया? मैं क्या कहती हूँ? अभिया ने शरीर नज़रों से देखकर गला खंखारा। ये एक पैरासाइट है जिसका काम इंसानों की बॉडी में रहकर उन्हें ताउम्र डिस्टर्ब करते रहना है। मरो तुम। नाक सुकेड़ती वो तहरीम को कुछ और प्यारी लगी। बहरकैफ दावत ना होते हुए भी हो गई थी। बेगम कर्नल भी खुश और बड़ी अम्मा एंड फैमिली भी खुश घर लौटी थी। हाँ, बेगम कर्नल ने कर्नल साहब और बड़ी अम्मा ने बड़े अब्बा के बड़े प्यार से कान भी खींचे थे कि जिनकी गलत बयानी की वजह से दो शरीफ मिलनसार मोहल्लेदार घराने राब्ते में आ गए थे। बम तो इसके दूसरे ही दिन कर्नल साहब की मिसेज और प्यारी प्यारी बेटियों ने आकर फोड़ा था अपने काबिल तरीन और डिसेंट से बेटे के लिए उर्वा का हाथ मांगकर। उर्वा कॉलेज गई हुई थी, बल्कि घर की चारों बच्चियां ही स्कूल कॉलेज थी। अली और तैमूर भी बाहर गए हुए थे। घर की औरतों के सामने रिश्ता डाला गया। बहुत नेक और शरीफ है मेरा बेटा, बचगाना, नमाज का आदि, परहेजगार, और सबसे बढ़कर इतने करप्ट महकमे का अफसर होकर भी रिश्वत सिफारिश जैसी बुराइयों से कोसों दूर। बेशक आप जांच पड़ताल करवा लें, ऐसी कोई ज़रूरत ही नहीं थी। घर के सरबाब बड़े अब्बा कितनी ही बार अली और तैमूर को नसीहत करने के दौरान कर्नल से बेटे की मिसालें देते रहते थे कि वो मिसाली इंसान है, सिर्फ तनख्वाह पर पल रहा है, वगैरह वगैरह। बहरकैफ उनके चले जाने के बाद फितरी तौर पर शकीला नहाल ही नसी नज़र आई। पहला रिश्ता, वो भी इतना काबिल। उन्हें खुश होना ही चाहिए था। अलबत्ता रोशी भाभी किसी के राज की अमीन काफ़ी खटक सी गई थी।
मैं तो कहती हूँ इतने अच्छे रिश्ते को वापस फेरना बदशगुनी होगी। भाई साहब रिश्ते के लिए हाँ कर दें, शादी कुछ अरसे के बाद हो जाएगी। वैसे भी फारूक बेटे को जल्दी नहीं, उसने खसूसी कहलवाया था बहनों से कि उर्वा पढ़ाई ख़त्म कर ले, शादी बाद में। अगले सारे जुमले अली सुन ही नहीं सका, कान साए साए करने लगे थे और अब उसे सिर्फ अपनी प्यारी अम्मी के होंठ हिलते नजर आ रहे थे, जो लड़की के लिए अच्छे रिश्ते को पल्लू से बांधने की बात कर रही थी, कि जो उनके बेटे के लिए कितनी अहमियत की हामिल थी। अगर वो जान लेती तो कभी भी ये सिफारशी कलमात अदा न करती। बड़े अब्बा के कमरे में शकील साहब, बड़ी अम्मा, सादिया और वो बैठे थे। अचानक की गुफ्तगू का ट्रैक बदलकर सादिया ने ऐसा मौजू छेड़ दिया कि जिसे सुनकर अली को अपना वजूद बेरूह होता महसूस हुआ। सिफारशी कलमात अदा हो चुके तो बड़े अब्बा ने महज कहकर हल्का सा हुनकारा भर दिया। बस किसका रिश्ता, कैसी बदशगुनी। खुद को संभाल कर उसने किताब रखते हुए सरसरी सा पूछा। किताब के अल्फाज तक गड़बड़ होने लगे थे। अपनी उर्वा का तुम्हारे अब्बा के दोस्त कर्नल के बेटे का रिश्ता आया है और आप चाह रही हैं कि ताया अब्बू हाँ कह दे। बड़ी सरसी नज़रें माँ पर जमाकर उसने कहा था। जाहिर है इतना अच्छा, प्लीज़ प्लीज़। हाथ उठाकर उन्हें रोकता वो उठ खड़ा हुआ और बड़े अब्बा के पास घुटने टेक कर जा बैठा। आपसे मुझे ये उम्मीद नहीं थी, खासी शाकी नज़रों से उन्हें देख कर कहा। बड़े अब्बा खाक भी ना समझे और बड़ी अम्मा समझ कर खिल बैठी। दूर से ही उस सीनो जमील मिस्री हुस्न के मालिक पोते की बलाएं लेती रही। क्या मतलब यार, यार मत कहिए मुझे, सख्त लहजा अपना कर वो तड़का। ये अच्छा किया आपने, झूठ बोल के सबको पहले उनके घर भेज दिया कि वो उर्वा को देखे पसंद करें और फिर आकर रिश्ता मांगने लगे। झूठ मैंने बिल्कुल नहीं कहा था। कर्नल ने जैसा कहा मैंने वैसा पैगाम दिया। मैं अभी इतना बूढ़ा नहीं हुआ कि यादाश्त खो बैठूं। और अली तुम्हें क्यों एतराज़ हो रहा है? बच्चियों के रिश्ते मेल मिलाप से ही तो आते हैं। कमाल है। वो जिच सा सादिया की तरफ पलटा था। मैं झक मार रहा हूँ क्या, जो आप समझ नहीं रहे? गुस्सा, नाराज़ी, झुंझलाहट शकील साहब को भी उसका मुद्दा समझा गया और अब वो मुंतज़िर थे कब वो अपने मुंह से अपने प्यार का नाम लेता है। हाय क्या मतलब? सादिया समझी नहीं या समझने की कोशिश नहीं कर रही थी। बड़े अब्बा, वो जिद सा दोबारा पढ़कर उन्हें देखने लगा। अब तो आंखें तक बोल रही थी। अब्बा ने भी आंखों से पढ़कर, सुनकर और कुछ उसकी झुलाहट को देखकर अंदाज़ा कर लिया था कि पोता क्या कहना चाह रहा। बस उसकी कैफियत से हंस उठाने के लिए चुप बैठे रहे। यूँ बेबस और तपा हुआ वो उन्हें प्यारा भी तो बहुत लग रहा था। ये माँ होकर मेरी ख्वाहिश से नज़रें चुरा रही हैं। आप ही सुन लें, जब घर में रिश्ते मौजूद हो तो फिर ना बाहर झांकना करते हैं और ना बाहर वालों को झांकने दिया करते हैं। माशाल्लाह, बड़े अब्बा से दो भर हो गया था। मुस्कुराहट छुपाना, इस फ़लसफ़े की तशरीह करो। अली ने थक कर सर नीचे गिरा लिया, कुछ वक्त में लगाया, यानी ये कि फिर झटके से सर उठाकर उसने आरिया पार बात करने का पक्का तहिया कर लिया। जब घर में आप लोगों के सामने आपके हाथों में पला बढ़ा, ये अपनी जानिब इशारा करके उसने आंखें बड़े अब्बा की आंखों में डालकर संजीदगी से कहा, दुनिया का हसीन तरीन, सहीन तरीन, काबिल तरीन, शरीफ तरीन, बेहद इस्लामी, बेहद पाकिस्तानी ख़ानदानी नौजवान बैठा है तो फिर इस गोल मटोल नाक वाले DSP की तरफ देखने की ज़रूरत ही क्या है? सबने फरीज़ होने की शानदार अदाकारी की और सादिया असल में ही साकित हो गई। यानी कि तुम और इतनी सारी खूबियाँ। बड़े अब्बा के दिल में पटाखे फूट रहे थे। लाडला पोता और लाडली पोती, सोच कर ही तबीयत सेट हो गई। जी मैं मोहम्मद अली वल्द शकील अहमद, आपकी बेवकूफ़ अकल से पैदल पोती उर्वा जमील वल्द जमील अहमद से शादी का ख्वास्तगार हूँ। बोलिए मंजूर है? बड़े अब्बा को वो इतना प्यारा लग रहा था कि दिल को बामुश्किल उसके बोझ से लेने से मना कर पाए। पहले मुझे बताओ, ये बेवकूफ़ अकल से पैदल किसको कहा है? प्लीज़ छोड़िए ना, मेरी बात का जवाब दें। वो छोटे बच्चों की तरह मचल कर बोला, मंजूर है यार, मंजूर है। तुम्हें इनकार कर दूँ? मर ना जाऊँ मैं? वो खुशी से बेहाल उनके सीने से जा लिपटा और लिपटाए लिया। बड़ी अम्मा के जब्त किए हुए कहकों ने उबलना शुरू कर दिया था। बड़े अब्बा के बाद शकील साहब ने बेटे को गले लगा लिया। खैर से बड़ा हो गया था, शादी की बात कर रहा था, कैसे गले न लगाते? और ज़रा अपनी बहू को देखिए। अजीब से तासुरात में घिरी सादिया को देखकर अली कहने लगा, बेटे को बेरूह करने चली है, अल्लाह ना करे। बड़ी अम्मा और सादिया ने एक साथ दहल कर कहा। मैं अभी भी चुप में रहता, अपनी खामोश मोहब्बत का राज ना खोलता, खसूसन शादी की तो बात ही अपने मुंह से ना करता। आखिर मशरकी लड़का हूँ। बिल्कुल बिल्कुल, इसमें कोई शक नहीं। तुम्हारी शराफत का सबूत तुम्हारी कुछ देर कबल की बेहयाई ने दे दिया है। बड़े अब्बा ताईदी सर हिलाने के साथ साथ डंडी भी मार गए और ये चली थी उर्वा बेबी का रिश्ता कराने। मम्मा, आपने ये कारोबार कब से संभाल लिया? मैं जानती थी तुम्हारी चाहत मोहब्बत, आहिस्तगी से सादिया ने कहा।
सभी उनकी जानिब मतवज्जे हो गए। फिर बड़े अब्बा इस्तफामिया उन्हें देखने लगे। हम रिश्ता किस मुँह से मांगेंगे अब्बा जान? उर्वा की हैसियत के मुताबिक ना हमारा घर है ना अली की नौकरी। उर्वा को तो छाँव में रहने की आदत है, मेरे घर में तो तपती धूप का राज है। मेरी बेटियां तो इसलिए आदी हैं कि वो पैदा ही इस घर में हुई हैं। उर्वा तो आसाइशों की पली है, सबके हाथ का चाला सोने का चमचा लेकर पैदा हुई है। हमारी घर की सफ़ेद पोशी उसे कहाँ रास आ सकेगी? और सबसे बढ़कर भाई साहब कहाँ इस छोटे से घर में अपनी बेटी, इकलौती बेटी देना पसंद करेंगे कि जिसमें उनकी जान बंद है। यही सोचकर मैंने अपनी ख्वाहिश और अली की मोहब्बत से मुंह मोड़ लिया। अपनी इज्जत अपने हाथ में होती है। अब जान किसको खबर कल हम अली के लिए रिश्ता मांगने जाएं और भाई साहब बुरा मानकर हमें हमारी औकात ही याद दिला दे, फिर हम इन मोहब्बतों से भी दूर चले जाएं कि जो आपस में पल रही हैं। ये ठीक है कि वो हमसे बहुत प्यार करते, मौका बेमौका एहसास दिलाए बगैर हर किस्म की मदद करके सहारा बनते, मगर इसका मतलब ये नहीं कि हम चादर से बढ़कर शय मांग लें, एहसानों का बदला गलत अंदाज से दें। इतनी लंबी बात के जवाब में अली ने तो गुमसुम सा माँ को देखे ही गया। इस किस्म की सफाक हकीकत से तो वह कतई लाइल्म था। बाखबर होता भी तो दिल पर किसको इख्तियार होता है? वो तो चांद तक का तमन्नाई बन बैठता है, मगर वो अनोखा लाडला नहीं था, आपस में पलने वाली मोहब्बतों नहीं। उसके दिल में उस खुशकुन मोहब्बत का बीज बोया था जो अब अपनी जड़ें इतनी फैला चुका था कि दूसरे तो क्या खुद अली भी उसे उखाड़ के नहीं फेंक सकता था। तभी तो वो एकदम ढीला सा पड़ गया था। माशाल्लाह यार, तुम्हारी अम्मा तो सियासत में जाने के काबिल हो गई, बड़ी ऊंची ऊंची तकरीरें झाड़ रही हैं। मगर ये भी सुन लो, रिश्ते गुर्बत अमारत देख के नहीं किए जाते, और किए भी जाते हों पर मेरी ज़िंदगी में मेरे पोते पोतियों के ऐसे नहीं होंगे। जमील और शकील एक ही माँ बाप की औलाद के लिए भी एक खून है। मुझे यकीन है वो अपनी औलाद के लिए भी एक दूसरे के घरों में झांकी मारेंगे, और अपने अली का मुस्तकबिल ताबनाक है। कुछ अरसे की देर है, फिर ये इंजीनियर बन जाएगा। जमील यकीनन इसका मुस्तकबिल जहन में रखेगा। ना तुम सोच कर हलकान हो, ना मेरे पोते को करो, अल्लाह बेहतर करेगा। देखो ज़रा माँ की गमनाक तकरीर सफ़ेद पोशी सुनकर पीला फटक हो बैठा है मासूम। यार बहादुर बन और अपनी ये दाढ़ी मूछे भी साफ़ करवा, बड़ा फैशन आ गया आजकल। लड़के मजनूओं की तरह हल्की हल्की शेप बढ़ाए फिर रहे हैं। बड़े अब्बा की तरफ देखते हुए मैं नहायत पुरसोच अंदाज में अपनी 3-4 दिन की बड़ी शेप पर हाथ फेरने लग गया था। 2-1 दिन तक बाबर भी आ रहा है, फिर चलेंगे रिश्ता डालने। उसके कान में बड़ी अम्मा की आवाज़ गूंजी थी, जबकि खुश होने के बजाय वो अपने सामने नादीदा सवालिया निशान को घूरता उलझनों का शिकार होता गया। अली और तैमूर घर आए तो दस्तरख्वान अमूमन एक ही लगा करता था, जैसा कि उस वक्त लंबी सी चादर पर रात के खाने के लवाजमात रखे थे और अतराफ में मोहब्बतों भरे गुलशन के मकीन कहकों और मुसरतों का दामन पकड़े खाने में मसरूफ़ थे। बाबर भाई की मिसेज़ अरमीन भाभी के कहकों की तो बात ही और होती थी, बात बे बात निकलते थे और फलक शगाफ होते थे। उनके हर कहके पर बाबर भाई का पारा दर्जा बदर्जा चढ़ता चला जाता। हमारे घर की मासी के जैसा मुंह फाड़ कर हंसती है ये, साथ ही वो मुंह बनाकर सबकी मालूमात में इजाफा भी करते। अरमीन इस पर भी कहका दाग देती। जिस रोज़ वो मुल्तान आया करती अली घर में दाखिल होते ही ताइद चाहता, अरमीन भाभी आई है ना? सब पूछते, तुम्हें कैसे पता चला? उनके कहके जफरी की दुकान तक सुनाई दे रहे थे। वो मरे से गली की आखिरी और कदर फासले पर मौजूद दुकान का कहता। अरमीन भाभी का कहका यहाँ भी बरामद हो जाता, यूँ गोया ये उनके लिए फ़ख्र का मकाम हो। उस वक्त भी रात के खाने का दौर चल रहा था। अरमीन भाभी के कहको और बच्चों की हर बोर्डिंग में भी मर्द हजरात की हिम्मत थी जो सियासी बहस में उलझ बैठे थे। आखिरी सदी है मेरे बच्चों, आखिरी सदी। अपने हाथों से हमारे हुक्मरान कश्मीर काफरों को सौंप रहे हैं। ये भी कोई हल है इस मसले का, जिसको कायदे आज़म पाकिस्तान की शहरक कहते थे? उसे पॉपुलर मगर ना अहल हुक्मरान काटने पर तुल गए। मगर बड़ा गमगीर मौजू ज़ेरे बहस आ गया था। अली की तवज्जो आप ही आप मबजूल हो गई। दर हकीकत वतन और मज़हब परस्ती में वो बेहद हसास वाक़ हुआ था। ओहो प्लीज़, बलाखिर पेचो ताप खाती और बात चला कर बोली तो सब उसकी तरफ देखने लगे। जो जैसा कर रहा है करता रहे, हमें क्या? अली तुम भी इस बोर गुफ्तगू में शामिल हो गए हो, सारा मूड ख़राब कर दिया। वो अच्छी खासी बोर हुई बैठी थी, अपने आला ख्यालात का इजहार करने में ज़रा भी ना हिचकिचाई कि जिन्हें सुनकर बुजुर्ग हस्तियाँ मुस्कुराने लगी थी। बाबर भाई ने तो हल्की सी चपत भी उसके सर पर रसीद कर दी। यूँ रंजीदगी में डूबा माहौल वापस अपने रंग में आने लगा। चलो जी, हमने बंद कर ली अपनी सियासी गुफ्तगू। अब तुम भी ज़रा कान खोल कर दिमाग खोल कर सुन लो कि अली तुमसे अच्छा खासा बड़ा है। तुम इसे भी तैमूर की तरह आप कहकर मुखातिब किया करो। तुम कहना मुनासिब नहीं लगता।
बड़े अब्बा ने बिल्कुल गैर मुतवक्के सी बात का ऑर्डर दिया था। उर्वा तो हैरान हुई ही। अली भी चौकन्ना होकर बड़े अब्बा को घूरने लगा कि जिन्होंने बेमौका ही उर्वा को अदब आदाब सिखाने की इब्तिदा के लिए ये जुमला कहा था। बाकी सबकी नज़रें उर्वा के हैरान होते चेहरे पर टिक गई कि जिससे बड़े अब्बा की कमज़ोरी दिमाग का शक सा होने लगा था। लेकिन क्यों बड़े अब्बा, ये तैमूर भाई से तो छोटा ही है। जी भरकर हैरान होने के बाद वो इत्मीनान से गोया हुई थी। 10 महीने का छोटा, बढ़ाई होती कितनी है। तैमूर से छोटा होने के बावजूद ये बड़ा ही लगता है। तुम इसे भी आप कहकर इज्जत व एहतराम दिया करो। बड़े अब्बा पर आज नहीं मालूम क्यों अली की इज्जत व एहतराम का भूत सवार हो गया था और वह अब कुछ झुंझलाने से लगी थी। और अली जो पहले हैरान बैठा था अब गहरी दिलचस्प नज़रों से बगैर इर्द गिर्द बैठे हुओं की परवाह किए उर्वा को देखे गया। हालांकि उसके इस इर्तिकाज को महसूस करके रोशी भाभी ने 3-4 बार गला भी खनखार डाला था। सॉरी बड़े अब्बा, मैं तो इससे कभी भी आप जनाब कहकर मुखातिब न करूं। काफ़ी देर बाद वो बोली तो भी अपनी हठधर्मी पर कायम रहकर। धीरे धीरे अली की मुस्कुराहट गहरी होती जा रही थी। वो जानता था बड़े अब्बा और बड़ी अम्मा अचानक ही उर्वा को तमीज़ तहज़ीब वो भी अली के नाम की क्यों सिखाने पर आ गए। वो किस लिए? बड़ी अम्मा ने भौहें अचकाई। वो इसलिए कि इसकी शक्ल ही नहीं इज्जत तो एहतराम करवाने वाली। व्हाट? इर्तिकाज टूट गया था सुनकर नहायत सदमे से अली चिंघाड़ा। मेरी शक्ल प्रेसिडेंट बुश जैसी है क्या? सबकी हंसी निकल गई। हो या ना हो, तुम इसे तैमूर के जैसा एहतराम दोगी? बड़े अब्बा ने दबंग लहजे में कहा। और वाकई तो सर से धुआं बरामद होने लगा। बचपन से ही अली उसका दोस्त होने की वजह से आप जनाब वाली हैसियत से ऊपर का दर्जा पा चुका था कि जो उससे पोशीदा ही था। अब 2 लम्हों में तो वो उसे आप जनाब कहने से भी रही थी। सो आंखों में शदीद खौफ की सुमोई वो सबकी तवज्जो का, दिलचस्पी का मरकज़ बनी रही। उस वक्त नहायत ज़रूरत के तहत अली को मुखातिब करता था मगर वो सुनो की बजाय सुनिए कह नहीं सकती थी। दिल में ख्याल आ रहा था कि शायद अली खुद ही उसे मुखातिब करे तो वो अपना मुद्दा बयान करे, मगर वो तो इस वक्त बिल्कुल बेनियाजी बरतने पर तुला हुआ था। थक हार कर वो धप धप करती दस्तरखान से उठ गई। अली की नज़रों ने कमरे के दरवाजे तक उसका ताक़ुब किया था। ये तो तय था कि चंद लम्हों बाद उसे उर्वा के सर पर क्या काम था पूछने के घर से जाना ही था, नहीं तो बेसकूनी ही बेसकूनी रहती। मोहब्बतों की पैमाइश की जाती तो वो ज़रूर अपनी एक तरफ़ा मोहब्बत की हद फाजिल जानने के लिए बेचैन रहता। उर्वा जमील अहमद उसकी ज़िंदगी का नाम था। वो उर्वा से कितनी मोहब्बत करता था इसका अंदाज़ा करना भी एक दुश्वार काम था। उर्वा उसके दिल की धड़कन का बायस थी, उसके वजूद में पनपती रूह उर्वा थी, उसकी शिद्दतों की इंतहा उर्वा थी। मगर अब वो अपनी एक तरफ़ा मोहब्बत का अंजाम चाहता था। कोई खुशकुन बहारों का पैगाम लाता अंजाम वो महबूब से इजहार मोहब्बत चाहता था, अपनी शिद्दतें उस पर खोलना चाहता था। उसकी रातें बेचैन व बेकरार गुजरती हैं क्यों, ये बताना चाहता था। वो कहना चाहता था मैं बहुत बेचैन रहा, अब तुम भी रहो। मेरी रातें बेकरार गुजरी हैं, कुछ तुम्हारी भी गुजरें। मैं बहुत तड़प लिया, मेरी मोहब्बत में ये तड़प तुम भी तो सहो। वो अपनी दास्तानी मोहब्बत बयान करना चाहता था, जो आग एक तरफ़ा मोहब्बत की सूरत में उसे हम वक्त जलाए रखती थी। उसे उसके दिल में जलाकर खुद फवार में भीगना चाहता था। इश्तिहार मोहब्बत के बजाय इजहारो एतबार मोहब्बत चाहता था। खामोश मोहब्बत झुकने लगी थी। उसकी तैयारी आखिरी मराहिल में थी जब मैसेज टोन ने उसकी मसरूफियात में खलल पैदा किया। अली के मैसेज अमूमन रात 10 बजे के बाद मौसूल होते थे। ये यकीनन नरूज या नुशीन में से किसी का होगा। यही सोचते हुए उसने इत्मीनान से शोल्डर से ऊपर तक कटे सिल्की बालों को की पोनी टेल बनाई और नाक का दाना जायज़ा लेने के बाद सेलफोन के पास आई कि जो साइड टेबल पर धरा था। और वह जल्दी करो, देर हो रही है। कबल इसके कि वह मैसेज पढ़ती अरमीन भाभी ने दरवाजे से झांक कर अजलत दिखाई। आ रही हूँ भाभी, तो दूर तो नहीं जाना, सिर्फ दरवाज़ा ही तो पार करना है और अभी तो 9:15 बज रहे हैं। उसने जलाकर कहा था। अरे गुड़िया, जल्दी जाएंगे तो ज़रा हल्ला गुल्ला भी करेंगे। अरमीन भाभी तो यूँ चमक रही थी गोया शादी में जा रही हूँ। हाय, उसने आंखें फाड़ कर उन्हें देखा। आप डांस करेंगी? बड़े अब्बा बाबा और तुम्हारे भाई लोग जब उठ जाएंगे तब मैं सानू नहर वाले पुल पे बुला के ये नरगिस जैसा सेम डांस करूँगी, उन्होंने बड़े मज़े से बताया। वाओ, उर्वा की हंसी छूट गई। मैं बस तैयार हूँ, आप जाइए, अभी आ रही हूँ। अरमीन भाभी चली गई तो उसने मैसेज पढ़ना स्टार्ट किया। साथ ही हैरान भी हुई कि अली का मोबाइल नंबर था और कोई नज़म थी। हैरान सी तवज्जो से पढ़ने लगी। कहो अब क्या कहूँ तुमसे, बताओ क्या लिखूँ तुमको, मुझे तमहीद दो कोई, मुझे उम्मीद दो कोई,
नया एक लफ्ज़ हो कोई, जहाँ से बात चल निकले, मेरी शक्ल का हल निकले। बताओ लहजा कैसा हो कि तुमसे बात करनी है। तुम अपनी रोशन आंखों को अगर खोलो तो मैं लिखूं। तुम्हारे लब से आएगा सुखन में एक कटीलापन। तुम्हारी आँख दे देगी तखातब को नशीलापन। कहो अब क्या इरादा है, मुझे इजहार करना है कि बेताबी ज़्यादा है। एक बार, दो बार और बार बार उर्वा ने नज़म कितनी ही बार पढ़ डाली। तहीर था कि हद से सवा था। समझ और ना समझ की कैफियत यक बारगी वार हो रही थी। फजूल से शेर टाइप करके भेजने वाले ने ये मबहम अल्फाज उसे क्यों लिख भेजे थे? ये सवाल ऐसा था कि हर मसरूफियत छोड़ छाड़ कर सिर्फ तन्हाई और अपने बेडरूम की ख्वाहिश जाग उठी थी। अली ने ये नज़म क्यों लिखी मुझे? दिमाग एक जगह पर मरकूज़ हो गया था। बेशक वो बचकाना अदात व फितरत की मालिक थी, अली के मीठे मीठे जज्बात की पहुंच से बहुत दूर, लेकिन अच्छी शायरी उसे हमेशा अट्रैक्ट करती थी। फ्रेंड की देखा देखी वो भी डायरी लिखने लगी थी और डायरी में सिर्फ मनपसंद शायरी ही लिखती थी। रुदादे शब वो रोज़ नहीं और शायरी पढ़ने का ही असर था कि वो उस वक्त अली की भेजी उस मबहम नज़म में उलझी खड़ी थी और न जाने कितनी ही देर तक यूं स्टैचू बनी रही कि शकीला खुद धमाके के साथ कमरे में दाखिल हुई। एक तो तुम्हारा ये मोबाइल। आते ही उसके हाथ से मोबाइल चपट कर वो चीखी और वह किसी ख्वाब से जागी थी जैसे। इसे तो मैं तोड़ दूंगी, वक्त पे वक्त बचता रहता है। चलो अब, पहले ही इतनी देर हो गई है। बहुत घसीले अंदाज में सेलफोन वापस टेबल पर पटक कर वो बोली और जाने लगी। आई हो या क्रेन मंगवाऊँ? दरवाजे के पास रुककर दोबारा गरजी थी। जा तो रही हूँ, अली से पूछ लूँगी। ये सोचकर वो मुतमईन सी शकीला के हमकदम हो गई। अगले चंद लम्हों बाद जमील साहब और शकीला की मैयत में रोशी भाभी, अरमीन भाभी, हमायूं बाबर, शर्माया, घबराया तैमूर, शोखिया मुसरत से मुस्कुराती खिलखिलाती और वह अपने शोर से मुर्दों को भी जगाते बाबर और हमायूं के 4 बच्चे दरमियानी दरवाजे से गुजर रहे थे। आय हाय, बाबर के बच्चे फिर आ गए। हड़बड़ाकर बड़ी अम्मा बैठी थी। गजब के शरारती हैं। नजवा, 2 सर दर्द की गोलियां ले आओ, मैं पहले से ही खा बैठूं। उनके आने से सर फटने लगता है। हमायूं के भी बच्चे शरारती हैं, पर इतने नहीं। ये तो जाने माँ के पेट में 9 माह कैसे सुकून से रहे होंगे। अरमीन के जैसे शैतान है। बाबर की हिम्मत है जो माँ और बच्चों को संभालता है। नजवा के गोलियां लाने तक बड़ी अम्मा तोप के गोले दागती रही। नेक पग, शोर है तो ज़िंदगी है। इसी से तो घरों में ज़िंदगी का पता चलता है। शोर के बगैर घर नहीं, कब्रिस्तान होते हैं। हाँ, कमरे में शकील साहब भी बैठे थे। बाप की बात पर उन्होंने मुस्कुराकर माँ को देखा कि जो अभी भी बाहर से आते अरमीन के मशहूर ज़माना कहको और बाकी सबके शोर की जानिब ध्यान लगाए हुए थी। ये आज पूरी की पूरी पलटन क्यों आ गई? बड़ी अम्मा ने एक और नुक्ता एतराज़ उठाया। तब तक मुस्कुराती हुई सादिया के पीछे आंखों को चंधियाती शकीला दाखिल हुई। रेशमी कामदार कपड़ों और मेकअप से मज़य्यन वो बड़ी अम्मा को ही नहीं, बड़े अब्बा और शकील साहब को भी हैरान करके पीछे उनसे भी ज़्यादा चमकती हुई रोशी और अरमीन थी। फिर मामूल से हटकर शौक से कपड़ों में मलबूस उर्वा थी। यहाँ तक कि मर्द हजरात भी नए कपड़ों में आए थे। बच्चों की तो तैयारी ही काबिले दीद थी और सबसे आखिर में तैमूर की सवारी बादे बहारी थी, जिसकी शक्ल पे आज नए नए रंग फूटे पड़े थे। एक सा तासुर भी जागजी था। बाबर भाई और हमायूं भाई ने मिठाई के टोकरे बड़ी अम्मा के करीब पलंग पर रखते कि जो अभी भी वर्ताए हारत में डूब उभर रही थी। खैर तो है भाई, कहीं जा रहे हो? बड़े अब्बा एक साइड पे हो गए कि गद्दे पर जमील साहब को भी जगह देनी थी। बाकी सब कारपेट पर ही धरना मार कर बैठ गए। अकेले ही शादियाँ भुगताने जा रही हूँ। हमसे तो कहा होता, हम भी तैयारी कर लेते शकीला। बड़ी अम्मा ने तनक कर बहू का रुख अपनी जानिब किया। शकीला के अंग अंग से हंसी फूट रही थी। ना तुम्हें शर्म आई इस उम्र में ये लेपा तोपी करते हुए? मेकअप हजम नहीं हो रहा इनसे। क्यों शर्म आए? खैर से 3 बेटों की माँ हूँ और अल्लाह ने बेटों के भी बेटे ही दिए, मैं क्यों दिल मार के रहूँ? जवाबन चमक कर वो बोली तो बड़ी अम्मा आंखें सुकेड़ कर रह गई। बूढ़ी घोड़ी लाल लगाम, ये कहने से वो खुद को पास न रख सकी। हाँ भाई, वजह क्या है? तुम तीनों सास बहुओं ने अपनी चूंचें रंगी हुई हैं। खामखा तो ये मेहनत नहीं की होगी। अब के बड़े अब्बा भी जानने पर मिसर हुए। वैसे दिल में कुछ खटका सा हो गया था कि वजह उसी घर से मुतल्लिक है। बड़े अब्बा आप भी जाइए, नहा धो आइए, हम मूवी भी बनाएंगे। अब के उर्वा की चहकार उभरी थी। मेरे नहाने धोने से तुम्हारी तैयारी का क्या ताल्लुक, और ये मूवी क्यों बनेगी? बड़ी अम्मा आप भी जाइए और रेड सिल्क वाला सूट पहनाइए, वो वाला जिस पर नजवा ने मोती लगा दिए थे। बड़े अब्बा को छोड़कर उर्वा बड़ी अम्मा के पीछे पड़ी थी। ख्वामखा ही वो तड़क कर उर्वा से दूर हुई थी। अरे अम्मा, ख्वामखा क्यों? आज आपके तीसरे पोते की मंगनी हो रही है, इतना भी हक नहीं बनता आप नए कपड़े पहन आए।
अब कि शकीला ने जज्बाती हर्बा आजमाया तो वो कुछ चौंकी। अच्छा, कुछ सोचते हुए नजवा की तरफ देखा। नजवा बेटी मेरे कपड़े निकाल दो फिर। ये हुई ना बात। और वह बिया और रजिया के साथ लगी बैठी थी। बिया और अली एक साथ हॉल कमरे में दाखिल हुए थे। अली को देखते ही नज़म उर्वा के जहन में ताज़ा हो गई। अली की नज़रें भी उससे टकराई थी। ऊपर से उसका उलिया कदरे बड़ी हुई शेव और बिखरे बाल। उर्वा ने इधर उधर देखना शुरू कर दिया। ये बड़ी अम्मा क्यों दुल्हन बन आई हैं? तैमूर के साथ आलती पालती मार के बैठने के बाद वह इस्तफार करने लगा तो शकीला मुस्कुराने लगी। अभी बताते हैं उर्वा के अब्बू, बिस्मिल्लाह करें। शकीला के कहने पर जमील साहब ने गला खनखार कर कहना शुरू किया। शकील, समझ नहीं आ रहा कैसे कहूँ। वो कुछ झिझक रहे थे और सुनने वाले उनकी अनकही बात समझते जा रहे थे। पापा मैं कहती हूँ, उर्वा की खनकती आवाज़ गूंजी। चचा जान और मेरी प्यारी चाची, आज हम अपने तैमूर भाई के लिए आपकी नजवा का रिश्ता मांगने ही नहीं बल्कि अंगूठी पहनाने भी आए हैं। क्यों बाबा? ठीक कहा ना मैंने। सबको फरीज करने के बाद उसने रुखे रोशन जमील साहब की तरफ फेरा जो इंतहाई शफकत से उसे देख रहे थे। बिल्कुल ठीक, मेरी शक्ल मुश्किल आसान कर दी मेरे बेटे ने। कमरे में खामोशी और बेयकीनी सी फैल गई थी। शकील, बड़ी अम्मा और बड़े अब्बा तो उमड़ती खुशियों को छुपा नहीं पा रहे थे। अलबत्ता सादिया कुछ गुमसुम सी हो बैठी थी। क्यों सादिया, तुम्हें कोई एतराज़ है क्या? उनकी खामोशी और संजीदगी महसूस करके शकीला ने रसान से पूछा तो वो झलमलाती आंखों से उन्हें देखने लगी। आंखों में बेयकीनी तैर रही थी, तशक्कुर हलकोरे ले रहा था। ज़िंदगी का लम्हा लम्हा साथ रहकर बिताने वाली शकीला क्यों कर न पहचान पाती? आसूदा सी मुस्कुराहट उन पर निछाव करने के बाद वो आपदीदा हुई। सईदा से लिपट गई, सादिया से लिपट गई। खुदा गवाह है सादिया, मैंने और जमील ने बहुत पहले से तैमूर और नजवा के रिश्ते का सोच लिया था। हमारे जहन में कभी भी ये ख्याल नहीं आया कि नजवा के लिए कोई और भी रिश्ता मांग सकता है। हमेशा नजवा को अपनी बहू की नज़र से देखा और इस बात का कि गवाह मैं और रोशी दिन में कई बार करते थे। मेरा दिल करता था मैं फ़ौरन से पेशतर अपनी इस ख्वाहिश का इजहार तुम्हारे सामने करके नजवा के लिए तुम्हारी फ़िक्रमंदी का खात्मा कर दूं, लेकिन ये उर्वा के अब्बू मना कर देते थे, हमेशा ये कहकर कि अभी बच्चे छोटे हैं, सेटल हो जाएं, दूसरे इनके जहन बढ़ जाएंगे। लेकिन बच्चे हमसे ज़्यादा जल्दबाज निकले। बड़ी फ़ख्रिया और शौक़ सी नज़र शकीला ने तैमूर पर डाली थी कि जो उन्हें इशारे करते थक नहीं पा रहा था कि ज़्यादा मत खुलें, कुछ मेरी इज़्ज़त का पास करें, बड़े अब्बा तो जीना मुहाल कर देंगे। पर शकीला आज जोश में आई हुई थी। उसके तनबीह भरे इशारे नज़रअंदाज करके दोबारा शुरू हुई। तैमूर ने इस बार आते ही खुद नजवा का नाम लिया तो समझो मैं खुशी से पागल हो गई। फ़ौरन उसके बाबा के पास दौड़ी कि बच्चे बड़े हो गए, अब मुझे मत रोकिए, मैं रस्म करके रहूँगी। यूँ हमने बाबर और अरमीन को भी इसी मकसद के लिए बुलवा भेजा कि मंगनी पर सब एक साथ हों, वरना इन्होंने तो ईद पर आना था। अब आंसू साफ करो और इजाज़त दो ताकि हम अंगूठी पहनाएं। इस मर्तबा सादिया के चेहरे पर मुस्कुराहट पूरे जौबन पर थी। इस बात में सर हिलाते हुए उन्होंने मियाँ का आसूदा सा चेहरा देखकर उठकर छुई मुई बनी नजवा के पहलू में जा बैठी। मेरी बच्ची बहुत प्यारी, नेक और गुणों वाली है, हमारे घर में तो रोशनियाँ कर देगी। रोशी भाभी से अंगूठी लेते हुए शकीला ने मोहब्बत पाश लहजे में कहा। नजवा को तो सर उठाकर तैमूर तो क्या किसी को भी देखना दो भर हो गया। इस सारी सूरत हाल का आज से पहले तक सोचा ही नहीं था। तैमूर वाकई बहुत बेताब साबित हुआ, ये यकीन आ गया था। ये ज़्यादती है ताई अम्मी, आपने हमें तो बताना ही नहीं। हम भी नए नवेले कपड़े पहनकर तैयार होकर बैठे। अब प्लीज़ मूवी मत बनाइएगा, वरना देखने वाले समझेंगे दुल्हन और दुल्हन वालों को मार कर बिठाया गया। अजिया के मुँह बस होने पर सबके कह के उमड़ पड़े थे। सच्ची तो कह रही है मेरी बच्ची। चलो अच्छा, ज़्यादा दिल पर मत लो, हम दादा पोतियाँ बगैर तैयारी के टॉप पर हैं। इस अली के कपड़े बदलवाओ और सब बैठकर अपने सामने इसकी शेव भी बनवाओ। लोग मूवी देखकर इस पर ज़रूर एतराज़ करेंगे कि बहन और दोस्त की मंगनी पर ये क्यों मजनू बना बैठा था। बड़े अब्बा ने अजिया को मुतमईन करने के बाद अली पर मुस्कुराकर जुमले कसे कि जिसकी बड़ी हुई शेव उसकी खूबसूरती को चार चांद लगा रही थी। अली ने पहले जी भरकर उन्हें आंखें दिखाई, फिर रस्म करती ख़वातीन को मरकज़े निगाह बनाया कि जिनमें उसे सिर्फ़ और सिर्फ उर्वा को दिल में उतारता था, और वह ऐसी संग दिल बनी होती कि उसकी नज़रों के इर्तिकाज़ को महसूस नहीं कर रही थी या नज़रअंदाज कर रही थी। बहरहाल उसे दान किचकिचाने पर मजबूर ज़रूर कर रही थी। शकीला, छोटी भाभी और अमीन भाई नजवा को साथ कारपेट पर बैठी थी। उर्वा के हाथ से भारी कामदार दुपट्टा लेकर शकीला ने नजवा के ऊपर डाल दिया।
اور उस वक्त तैमूर का बस नहीं चल रहा था कि सुर्ख अनार हुई घबराए नजवा को एक जहाँ से छुपा कर कहीं उड़ा ले भागे। शिद्दत से ख्वाहिश उभर रही थी कि वो अपनी पलकें उठाकर उसके भी दीदार से फैज़याब हो जाए, पर उसे शर्माने से फुर्सत मिलती तो उसे देखती। ये नजवा की मंगनी की ताइफ है, ये जोड़ा, ये अंगूठी जो मैं इसे पहना रही हूँ। लेकिन मूवी तो स्टार्ट करो। डार्क मैरून लिपस्टिक में दुल्हन सी बनी शकीला ने बेटों को घर का तो हमायूं हैंडी कैम संभाले खड़े हो गए। अम्मी इस डियाना रंग के बजाय कोई और नहीं बनवा सकती थी। इतनी मोटी दोबा सी अंगूठी हर किसी की मंगनी पर उसे पहना दी जाती है। मैं ये रंग नहीं पहनूंगी। मेरे इन लॉज को कहिएगा वो मेरे लिए नए डिज़ाइन के बनवा कर पहनाएं। बगैर किसी शर्म हया के उर्वा ने आवाज़ बुलंद अपनी गुलपाशियाँ की थी, जिसे सुनकर माँ सिवाय शकीला के सभी महफूज हुए थे। शकीला ने उसके कंधे पर ताकतवर धमोका तक जोड़ दिया। क्या है अम्मी? उसने हस्बे तौफीक मुँह बसोरा था। अब तुमने नहीं बोलना, चुप। उसे डपट कर वो दोबारा अंगूठी की जाने में तवज्जो हुई कि जिसकी डिज़ाइनिंग हमेशा वाली थी। बच्चे इस अंगूठी को ख़ानदानी अंगूठी कहा करते थे और उर्वा डियाना रिंग एक तौले से वज़नी अंगूठी का यही एक डिज़ाइन बड़ी अम्मा को उनकी सास ने, उन्होंने अपनी बहुओं को और बड़ी बहू ने अपनी बहुओं को पहनाया था और 15 दिन पहले वही ख़ानदानी अंगूठी ऑर्डर पर तैयार करवाई गई थी नजवा को पहनाने के लिए। आप कैमरा मेरे हवाले करें और ख़ुद बीवी बच्चों के साथ बैठिए, मैं बनाता हूँ। अली ने मायूं भाई के पास आकर अपनी खिदमत पेश की तो उन्होंने बिना पसो पेश हैंडी कैम उसे थमा दिया। उसने बिस्मिल्लाह ही दिल की सरदार को फोकस करके की थी, जिसने मूवी बनवाने की घर से बाल खुले छोड़ दिए थे। अली गैर जानिबदारी से मूवी बनाना सभी की शक्लें हों। उसके कानों में रोशी भाभी की शहरी आवाज़ आए। वो बिना मतवज्जे हुए हल्की सी मुस्कुराहट सजाए अपने काम में मसरूफ़ रहा। दिमाग, दिल और हैंडी कैम को एक ही चेहरे पर फोकस कर लिया था। आप पहनाइए अम्मा। एक बार फिर अंगूठी पहनाते पहनाते शकीला रुक गई और बड़ी अम्मा ने से कहा, ना भाई, मैं लड़की वाली हूँ। अकेले अकेले सब तैयारियाँ कर ली, मेकअप शेकअप करके आ गई। अब अंगूठी पहनाऊँ मैं? ये भी खुद कर लो। मैं अपने अली की दुल्हन को अंगूठी पहनाऊँगी। अच्छा खासा रूठा अंदाज था बड़ी अम्मा का। शकीला हंसते हुए उनसे लिपट गई। इट्स नॉट फेयर बड़ी अम्मा, मैं आपका पोता नहीं हूँ। न कारखाने में तोते की यानी तैमूर की आवाज़ गूंजी कि जो अभी तक अपनी जगह पर जमा खड़ा बैठा था। और मुझे भी तो बुलाइए ना, मूवी बन रही है और मंगनी का मरकज़ी किरदार बेचारा पीछे बैठा है। साथ ही नाराज़ होकर ये भी कह दिया तो सबको एहसास हुआ कि वाकई उसे साथ बिठाना चाहिए। इससे साबित हुआ कि दूल्हा बेचारी मखलूक होता है। उसे दबोच कर अली सबके बीच ले आया। तैमूर ने उसे घूरकर दबोचे हुए कपड़ों की शिकनें दुरुस्त की। अल्लाह ये वक्त तुम पर भी जल रहा है। बिना किसी के ऑफर के तैमूर खुद भी बेड पर नजवा के साथ टांगे लटकाए जुड़ बैठा। सबने ये बआवाज़ बुलंद आमीन कोर्स में कहा था। शकीला एक बार फिर मुस्तैद हुई अंगूठी पहनाने के लिए। प्लीज़ प्लीज़ 2 सेकंड। नजवा का हाथ थामा ही था कि तैमूर अलग के बल चीखा। शकीला बदक कर पीछे हटी। अब क्या है? साथी घर आकर पूछा भी पेशानी सारी शिकन आलूद हो गई थी। मुझे ज़रा शर्म आ रही है, बाकायदा लजाकर तैमूर ने कहा और जेब से रुमाल निकाल कर नाक और मुँह पर रख कर बैठ गया। अब पहनाइए। उसका ऑर्डर महसूल हुआ। तैमूर भाई रुमाल हटाइए, बहुत बुरे लग रहे हैं, उर्वा ने कहा। तैमूर कान लपेटे बैठा था गालबन। अरमीन, रोशी, अभिया, हाजिया सब ने रुमाल हटाने पर जोर दिया। तैमूर ने एक की भी ना सुनी, यहाँ तक कि अंगूठी पहना दी गई। साथ ही साथ मुबारक सलामत का शोर बुलंद हो गया। रोशी भाभी ने एक छोटा डब्बा खोलकर सबसे पहले खुद गुलाब जामुन कब्जे में की। फिर नजवा और तैमूर का मुँह मीठा कराने के बाद डब्बा अरमीन के सुपुर्द कर दिया कि जो सब में मिठाई तकसीम करने लगी। शुक्र है बड़े अब्बा को तकसीम करने के लिए नहीं दी। उन्होंने मिठाई के 15 टुकड़े करके बांटने थे, बाकी की साल भर के लिए ज़ख़ीरा कर लेनी थी। मुसलसल मूवी बनाता अली बोला तो बड़े अब्बा का रसगुल्ला मुंह में जाने के बजाय रास्ते में ही साकित हो गया। ना इंजार नलायक, बदनाम करके रख दिया मुझे। डांटिए तो मत, आज मेरी बहन की मंगनी हो रही है। रोशी भाभी ने बड़ा सा गुलाब जामुन उसके मुंह में ठुंसा दिया। वो उस नागहानी के लिए कतई तैयार नहीं था। बामुश्किल गुलाब जामुन निकला। तुम्हें मिठाई खिलाने का ख्याल आना तो उससे चाहिए था, मगर लगता है वो आज तुमसे नाराज़ है। रोशी भाभी तीसरे गुलाब जामुन पर हाथ साफ करने के बाद उसके पास आ खड़ी हुई। अली ने गहरी सांस भरकर अपनी साहिर आंखें उन पर जमा दी। अगरचे ये डरावनी सी बात है, लेकिन मुझे भी यही लग रहा है। बड़े अफसरदा से अंदाज में वो यूं मजनू बन के बोला कि रोशी भाभी की हंसी छूट गई। ये तो सूरज के मगरिब से निकलने वाली बात हो गई। बहरहाल अल्लाह इस नाराज़गी को तवील ना करे। बाकायदा हाथ उठाकर दुआ देते हुए वो वहाँ से हट गई। अली ने ज़ेर लब आमीन कहा था। साहिर आंखें
عروہ کے گرد حصار بنا گئی تھی کہ نجوہ کا جانے کس بات پر سر کھائے جا رہی تھی۔ 12 بجے کے بعد جمیل صاحب نے جب اپنے گھر کی خواتینوں حضرات کو محفل برخاست کر کے گھر چلنے کا آرڈر دیا تو بڑے ابا گلا کھنکھار کر اچانک اعلانیہ انداز میں بولے، ابھی کچھ دیر کے لیے رک جاؤ، میں بھی اپنا مدعا بیان کرنا ہے۔ سب الرٹ سے ہمتن گوش ہو گئے۔ بڑے ابا نے چند ثانیے سر جھکا کر سوچنے میں وقت بھر دیے، پھر سر اٹھا کر گویا ہوئے، جمیل اور شکیلہ، اصولاً تو مجھے اپنا مدعا سعدیہ، شکیلہ اور تمہاری اماں کی ہمراہی میں تمہارے گھر آ کر بتانا چاہیے تھا، لیکن کیا ہے کہ آج سب اکٹھے ہوئے بیٹھے ہیں۔ خوش قسمتی سے بابر بھی ساتھ ہے، میں بھی اس کی موجودگی سے فائدہ اٹھا کر اپنے ہی گھر میں بیٹھ کر اپنے علی کے لیے جھولی پھیلاتا ہوں۔ یار، عروہ کو میرے علی کے نام کر دو۔ کمرے میں مدعا سن کر ایک دم سے خاموشی چھا گئی اور چھائی ہی رہی۔ ایک بندہ اپنی اپنی جگہ پر نہ جانے کیا سوچنے بیٹھ گیا۔ بڑی اماں، بڑے ابا، سعدیہ اور شکیل کی جواب طلب آنکھیں جمیل صاحب اور شکیلہ پر ساکت ہو گئی تھی، اور جس کے نام عروہ کو کرنے کی خواہش ظاہر کی گئی تھی وہ سر جھکائے دونوں ہاتھ آپس میں جکڑے مختلف وسوسوں کو گلے لگائے بیٹھا تھا۔ سر اٹھا کر کسی بھی فرد کے تاثرات جانچنے کی صحیح نہیں کی تھی، اور وہ جس کے لیے جھولی پھیلائی گئی تھی پوری کی پوری آنکھیں واقعی بڑے ابا کی جانب یوں تک رہی تھی جیسے وہ سٹھیا گئے ہوں، بھول کر اس کا نام لے بیٹھے ہوں۔ بھلا وہ اور علی، ان کے بیچ یہ رشتے کیسے قائم ہو سکتا ہے؟ انہوں نے کبھی ایک دوسرے کو اس نظر سے دیکھا ہی کب؟ ضرور بڑے ابا مذاق کر رہے ہیں۔ علی یار، بڑے ابا کے پچکارنے پر علی نے آہستگی سے تھکے ہوئے انداز میں سر اٹھا کر خاموش اور تشویش زدہ نگاہیں ان پر جمائی۔ یار میرے قریب آ کر بیٹھو، مجھے کچھ حوصلہ رہے گا۔ بڑے ابا کی شگفتگی برقرار تھی۔ وہ ناچار اپنی جگہ سے اٹھ کر ان کے پہلو میں جا بیٹھا۔ بڑے ابا نے بغور اس کے سنجیدہ چہرے کو دیکھا اور اس کا ہاتھ تھام کر آہستگی سے تھپتھپاتے ہوئے مسکرائے۔ اگر تم لوگوں کو اس پر اعتراض ہے تو میں نے رشتے کی بات یہیں بیٹھ کر کیوں کی؟ تمہارے گھر روایتی انداز میں رشتہ لے کر کیوں نہیں آیا؟ تو یہ اعتراض ابھی دور کر لیتا ہوں۔ تم لوگ جاؤ، ہم پیچھے پیچھے آ رہے ہیں، چاہے رات بیت جائے، جواب ہمیں آج چاہیے۔ ان کا لہجہ آخر میں دبنگ ہو گیا۔ ارے واہ، کسی کو اعتراض کرنے کی ضرورت ہی کیا ہے؟ اچانک ہی شکیلہ چمک کر بولی تھی۔ سب بتوں میں ایک ساتھ جان پڑ گئی۔ عروہ کے بابا شکیلہ نے مسکراہٹ چھپانے کی قطعی کوشش نہیں کی اور بلتی خوشی کے ساتھ شوہر کو مخاطب کرنے لگی۔ سب کو یقین دلائیے کہ پرسوں ہم دونوں اپنی اچانک دل میں آنے والی خواہش ایک دوسرے کے سامنے بیان کر رہے تھے کہ اگر شکیل بھائی اور سعدیہ عروہ کا ہاتھ مانگ لے تو کتنا اچھا ہو، اور اللہ کا کرم دیکھیے ہماری خواہش ایک دم سے پوری بھی ہو گئی۔ اب تو واقعی ضرورت نہیں رہی تھی ہاتھ سننے کی۔ شکیلہ کی ایکسائٹمنٹ نے سب کچھ تو واضح کر دیا تھا۔ کمرہ ایک بار جی اٹھا، سبھی کی بولیاں سٹارٹ ہو گئی تھی۔ میرا علی بہت تابعدار بچہ ہے، حد سے زیادہ سلجھا ہوا، اس کا مستقبل نہایت شاندار ہے، مجھے یقین ہے یہ بہت آگے جائے گا۔ بڑے ابا کی خوبیاں گنوا رہے تھے اور وہ آنکھیں پھاڑ کر انہیں حیرانی سے دیکھتے ہوئے سوچ رہا تھا، اگر یہ سب میں ہوں تو نالائق، نامعقول، گدھا، ناانجار اور نکما کس کو کہتے تھے یہ؟ وہ سب تو ٹھیک ہے بڑے ابا، لیکن اس بات کا تو یقین دلائیے کہ یہ ہماری عروہ کو خوش رکھے یا نہیں۔ روشی بھابھی کے کہنے پر اس نے مصنوعی خفگی سے انہیں گھورا۔ ارے اس کی یہ بڑی ہوئی داڑھی اعلان نہیں کر رہی؟ گھر آنے کے بعد سے یہ ہمیں زج کرتا رہا رشتہ ڈالنے کے لیے، ہم نہیں مانے تو مجنوں بنا صحراؤں کا اسیر ہونے لگا۔ بڑی اماں نے تیز آواز میں کہہ کر جہاں سب کو ہنسایا وہاں اسے سر جھکانے پر مجبور کر دیا۔ یہ تو فیشن ہے بڑی اماں، بتائیے ذرا، یہ شیپ مجھ پر سوٹ نہیں کرتی کیا؟ اللہ نظر بد سے بچائے، پھونکے مار مار کے تو باہر بھیجتی ہوں۔ بڑی اماں صدقے ہونے لگی۔ پھر سعدیہ کی ہمراہی میں عروہ کی جانب پیش قدمی کی جو غائب دماغ ہو چکی تھی۔ غالباً شکیلہ بھابھی، آج سے عروہ میری بیٹی ہوئی۔ اسے ساتھ لگا کر سعدیہ نے خوشی سے بے حال ہوتے ہوئے کہا۔ یقین ہی نہیں آ رہا تھا اکلوتے بیٹے کی خواہش پوری ہو گئی ہے، ورنہ تو اس کی محبت کا اعلان سننے کے بعد سے ان کی نیندیں ہی روٹ گئی تھی۔ مبارک ہو، میں یہ فتنہ تمہیں سونپ کر اتنی خوش ہوں کہ حد نہیں۔ اس سست الوجود پھوڑ اور بے وقوف کو تم اور علی ہی سنبھال سکتے ہو بس۔ قسم سے میرے سر سے پریشانی لے کر اپنے سر پر ڈال رہی ہے تم نے، ہر وقت کرنی تھی چاچی چاچی، کسی وقت اللہ نے اس کی سن ہی لی اور وہ چاچی کے گھر آنا ہی اس کے نصیب میں لکھ دیا۔ چاچی قربان اس پر، یہ تو میرے گھر کا نور ہے، پلکوں پر بٹھاؤں گی اسے، ایک بھی کام اپنی بیٹی سے نہیں کرواؤں گی، یہ تو میری سہیلی ہے۔ وہ عجیب دکھ بھری کیفیت میں کبھی ماں کو دیکھتی تو کبھی نیچھاور ہوتی چاچی کو۔ دل کر رہا تھا اٹھ بھاگے یہاں سے، مگر جسم و ذہن دونوں مفلوج ہو چکے تھے۔ بس اتنا سوچ رہی تھی کہ علی نے اچھا نہیں کیا، بڑے ابا نے اچھا نہیں کیا، کسی نے بھی اچھا نہیں کیا۔ میں یہیں اپنی بیٹی کو انگوٹھی پہنانے لگی ہوں۔ انگوٹھی چونکہ نئی بنی ہی نہیں تھی، سعدیہ نے اپنی انگلی سے ڈیانا رنگ اتار کر بڑی اماں کو تھمائی۔ معاف کر دو عروہ، تمہاری پسند کی انگوٹھی تمہیں بھائی لے کر دیں گے، ابھی یہی ہے، سو گزارا کرو۔
अभिया ने उसके कान में सरगोशी की। वो बस हाथों को घूरती रही। हैंडी कैम तैमूर के कब्जे में चला गया था। ख़वातीनो हज़रात दोनों मूवी बनवाने के लिए अलर्ट हो गए। गिन गिन कर बदले लूँगा। मेरी बार पर तूने किस तरफ कैमरे का रुख किए रखा था ये तो मुझे अब पता चला। मैं समझता रहा छत की बना रहा है या हमारे जूते की। आंखें उचका कर तैमूर ने अली से कहा था, कैमरा मुझे दो, अपनी मंगनी की मूवी मैं खुद बनाता हूँ। बड़ी डिसेंट थी मुस्कुराहट सजाए वो कैमरा लेने लगा तो तैमूर ने फ़ौरन पीछे कर लिया। खबरदार, दूल्हा काम नहीं करता और अपनी नाक पर रुमाल भी रखो। सॉरी, मेरी नाक तुम्हारी तरफ बह नहीं रही। तैमूर ने तड़प कर उसे देखा। इत्तफाकन आज उसे नज़ला भी था, मगर बहने वाली इस्तिलाह सरासर बहतान थी। बड़ी अम्मा कुछ देर कबल किए गए वादे के मुताबिक अली की दुल्हन को अंगूठी पहनाने लगी कि जो बेजान और ठंडी यख हुई बैठी थी। अरमीन भाभी एक कह प्लीज़। मल्तजिस अंदाज में तैमूर ने उससे फरमाइश की कि अरमीन भाभी का खुद ब खुद ही कह बल्कि कह के बराम धोने लगे। बाबर भाई बीवी की इस जी हजूरी पर खौल कर रह गए। हर जगह शर्मिंदा करवाती है मुझे। इंतहाई बदमज़ा से वो बीवी से फासले पर खड़े हो गए। अब पहनाऊँ? अंगूठी हाथ में लिए बड़ी अम्मा ने ज़िद सी कैफियत में तैमूर से तंजन इजाज़त मांगी। जी बिल्कुल इजाज़त है, उसने यूँ कहा गोया उसका ही ऑर्डर चलता हूँ। बड़ी अम्मा ने उर्वा की ठंडी ठार उंगली में अंगूठी पहनाई कि जो अच्छी खासी ढीली थी। लगता है अपने लड़के के नाप की बनवा ली आपने, उसी को पहनाई, हमें नहीं चाहिए। रोशी भाभी और ज़ोर से कहने लगी तो बड़ी अम्मा बौखला उठी। अच्छा बड़ी आई कहीं की चलाको, हम नहीं बनवा कर देंगे। अली और तैमूर की अंगूठियाँ भी बनवानी है, वो मुँह फुलाकर बोली थी। अब की बार नजवा और बड़ी अम्मा ने मिठाई के सामने रखे टोकरे खोलकर मिठाई एक बार फिर सबको खिलाई। बच्चों की तो ईद हो गई थी यार, पहले इतला दे देते तो अच्छा था। खाना तो ना खाते, खाली मिठाई खा लेते। बड़े अब्बा की नाक तक मिठाई भर गई थी। मोहब्बतों से गुंदे लोग खुशियाँ यूं ही कशीद करते, खुद भी खुश और अपने भी वाबस्ता लोग भी खुश। जैसा कि उस वक्त उन सबके चेहरों पर अलवही चमक फूटी पड़ रही थी। नफ़रतों कदरवतों से पाक दिल एक दूसरे पर कुर्बान जा रहे थे। अरमीन भाभी आप डांस कब करेंगी? अजिया खेल में था कि अरमीन भाभी कमाल का डांस करती, वो उनके सर पर जाकर चीखी। बड़ी अम्मा पास ही रौनक अफरोज़ थी। उन्होंने अरमीन को घूरा। ये मर जाए तो मैं तुम्हें दिखाती हूँ। कौन से गाने पे? अजिया खुश हो गई। मेरे पिया गए रंगनू, उसने लहरा कर बताया। बड़ी अम्मा गश खाने को आ गई। ये तुम घर में मियाँ के सामने भी करके दिखाती होगी? कड़े तेवरों से उन्होंने अरमीन भाभी से पूछा और वो इर्द गिर्द देखकर इस बात में सरे लाने लगी। ये ज़माना है आजकल का, तभी तो बच्चे शान के हो रहे हैं। बड़ी अम्मा की बुड़बड़ाहटें और अरमीन भाभी के कह के कमरे में आए भौंचाल में कदरे दब गए थे। बुड़बड़ाहटों से फारिग हुई तो बड़ी अम्मा नज़र के वजीफ़े पढ़ने लगी। अपने छोटे से ख़ानदान का यूं मिल बैठकर हल्ला गुल्ला करना उन्हें हौला रहा था, कहीं नज़र ही ना लग जाए। रात भीग रही थी, किसी को गुजरते वक्त का एहसास ही नहीं हो रहा था। आज की रात ऐसी मुसर्रतें दामन का हिस्सा बन गई थी कि वक्त कम पड़ रहा था खुशियाँ मनाने के लिए। अली तैमूर की लन तरानियों से बेजार सा दरवाजे के पास जा खड़ा हुआ। मुबारक हो। रोशी भाभी मुस्कुराती हुई वार्द हुई। तुम्हें तुम्हारी मनपसंद लड़की मिल गई, ना मिलती तो तुम्हारी यकतरफा मोहब्बत का दुख सबसे ज़्यादा मुझे होता। यकतरफा मत कहिए भाभी, अली ने सीने पर बाजू लपेटकर बेसाख्ता कहा था। मोहब्बत उसे भी है, बस ये कि अभी दराग को आगाही का दर नहीं खुला उस पर। अल्लाह करे ये दर भी जल्दी खुले। टीपू के पुकारने पर वो उधर मुतवज्जे हो गई और अली उधर जहाँ सब कुछ था, मगर उस सब कुछ को देखकर एक बेचैनी ने उसका अहाता कर लिया था और वह मुसलसल सपाट तासुरात के साथ बैठी थी। न जाने क्यों अली को महसूस हो रहा था कि उसकी आंखें नमी छलकाने को बेताब हैं। बार बार पलकें झपक कर वो उस नमी को अंदर धकेलना चाह रही थी, मगर नाकाम हो रही थी। और जब ज़्यादा थकी तो उठ खड़ी हुई। अली एकदम सीधा खड़ा हो गया और वह बच्चों को फैलांगती जितनी तेज़ी से दरवाजे की तरफ बढ़ी, अली ने उतनी ही फुर्ती दिखाते हुए टांग आगे कर दी। वो गिरते गिरते बची थी। सॉरी यार, और वो कहना चाहता था कि मुबारक हो, लेकिन उर्वा ने कटीले तासुरात समेत उसे घूरा तो अली उसकी तो शिकवा कुना आंखों में झांक कर चुप हो गया। ज़बान खुद ब खुद ही बेहिस हो गई थी उस पर कहर बरसाने के बाद। और वह दौड़ती हुई कमरे से तो क्या उसके घर से ही चली गई। उस रात सबके उठने से पहले अली भी अपने बेडरूम में चला आया। खफा खफा सी आंखें दिमाग में गोया फीड हो गई थी और जब तक अली उससे बात न कर लेता आंखों की उस खफकी ने उसे डिस्टर्ब किए रखना था।
کمرے میں پہنچتے ہی سیل فون ہاتھ میں لیے وہ بستر پر دراز ہو گیا اور جلدی جلدی میسیج ٹائپ کر کے عروہ کے موبائل پر سینڈ کیا۔ اس کے بعد 10-15 منٹ تک انتظار کیا مگر عروہ کا جواب بھی میسیج موصول نہ ہوا، حالانکہ اس سے پہلے وہ کوئک سروس دکھاتے ہوئے فوراً جواب بھیج دیا کرتی تھی۔ عروہ تمہیں کیا ہو رہا ہے؟ وہ پریشان سا اس کا نمبر ڈائل کرنے لگا مگر لگتا تھا وہ سیل فون آف کر چکی تھی۔ علی نے بار بار کوشش کی، ساری رات کی۔ عروہ نے موبائل بند ہی کیے رکھا۔ صبح ہی صبح علی کا ارادہ تھا اس سے باز پرس کرنے کا، اس قدر لا تعلق کیوں ہو رہی ہو، اس کی بابت پوچھنے کا۔ واو، بہت ہی اچھا ناول ہے۔ اس طرح کے ناولز پہلے پڑھا کرتے تھے، یہ کزنز بیسڈ اور فیملی، اس طرح کی جوائنٹ فیملی بیسڈ بہت اچھے لگتے تھے۔ اور ایسا ہی اب کافی دنوں بعد مجھے ایک ناول ملا ہے تو مجھے بہت ہی اچھا لگ رہا ہے یار۔ اس طرح کے ناولز اب میں پڑھنا چاہ رہی ہوں، بہت ہو گئے ڈیفرنٹ سولو بیسڈ ناول جس میں ایک ہیرو اور ایک ہیروئن ہوتا ہے، کپل جو بہت زیادہ ہوتے ہیں، بہت زیادہ کپل جن میں ہوتے ہیں یار۔ خیر، اس طرح کے ناولز مجھے بہت زیادہ پسند ہیں، یقیناً آپ لوگوں کو بھی اچھے لگتے ہوں گے۔ مجھے فیملی بیسڈ ناول بہت پسند ہے، تو میں کوشش کروں گی کہ آگے بھی آپ لوگوں کو ایسے ناول سناؤں، اور یقیناً آپ لوگوں نے اس ناول کو تھرو آؤٹ انجوائے کیا ہوگا۔ ہلکی پھلکی نوک جھوک بھی جاری تھی اور اچھا تھا، مطلب سارے لوگ انوالو رہے ہیں، فیملی پوری کی پوری انوالو رہی ہے، اور اس طرح کے ناولز بہت اچھے لگتے ہیں۔ تو پھر ملتے ہیں اس کی آخری ایپیسوڈ میں، اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔